Very good afternoon, all of you, and already so many persons on the line, and our learned Rajiv Kohli ji and Ashwani Katpale ji also online, and we have started the webinar in view of COVID-19. Today, we have our speaker CS Divesh Goyal ji. He will speak on the company law settlement scheme and board meeting and general meeting through video conferencing, and he will also discuss what is the position of the filing in the form for late fees, etc. So I request all of you except Rajiv Kohli ji and Ashwani Katpalia ji, please keep your video off and unmute sir. And Goel sir, Divesh ji, I'm visible. yes, you are visible, very visible, and please start the deliberation on the subject, sir. Yeah. Good afternoon, sir, everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Yeah. Good So afternoon, today we Bhaiya. are yes. Today we are going to discuss on the latest circular passed by the Ministry of Corporate Affairs on 30th March 2020. That is relating to the company law fresh settlement scheme. As we know, due to the lockdown, everything is closed in India. So this is the way out ministry came with giving the relaxation and the benefits to the corporate. And India, we know there are a lot of companies which have made default in completion of their filings and all. So this we can say is a great opportunity for all the members throughout the country to take the benefit of the scheme. So now let's start to discuss about the scheme. This scheme has been passed on the 30th March 2020. So approximately 11-12 days has been passed to passing of this scheme. Now one of the major, we can say major purpose of this scheme to allow the benefits of the company to clean up their slate. So through this scheme, all the companies throughout India can become a compliant company from the point of view of the filing of the e-form. Because as per this scheme, the main purpose of this scheme is to provide a chance of the defaulting companies to make good of their default by completion of pending annual filings. So now we can say there is a chance to the defaulting company. First word they have used the word defaulting company. Second they say make good of their default by completion of the annual filing. So by completion of the annual filing they can make their default good. Now how they can do everything we are going to discuss in this. Even I have covered some 15-20 questions also in this so that I can also discuss them. First, this scheme came on the 30th March 2020. The major question under this scheme, what is the currency period of the scheme? For which period this scheme shall be, we can say under which period we can use this scheme. This scheme is applicable from 1st April 2020 to 30th September 2020. So we are having 6 months time to use this scheme because many persons have asked the question the scheme, but still lockdown is going on and it may extend also. So how to take the benefit of the scheme? So I will say we are having 6 months time to take the benefit of the scheme. So there is no hurry. We have to take the benefit in the month of April only. So later on also we can take the benefit. So currency period of the scheme is the 1st April 2020 to 30th September 2020. This scheme is applicable on which type of companies is the second question. This scheme will be applicable on all the defaulting companies. So voice breaks or everything. ये बंदे अवेलेबल भी हो सकते नहीं गोयल साहब बिल्कुल ठीक है, आप चलिए बोलिए सर. Okay. So sir, I was discussing this scheme is available from the 1st April 2020 to 30th September 2020. The second question is about the applicability. Which type of companies will fall under this scheme? As per the scheme, all type of companies, whether it is a small company, whether it is a private, public, listed company, all companies fall under the preview of this scheme. So they can all take the benefit of this scheme. So this scheme is mentioned about defaulting companies. A defaulting company means a company which has made default in filing of any return, any document, any e-form with the ROC. तो अगर हमारी किसी भी कंपनी ने ऐसा कोई डिफॉल्ट किया है कि उसने कोई प्रीवियसली कोई फॉर्म नहीं फाइल किया, कोई रिटर्न नहीं फाइल किया आरओसी के पास, तो दे कैन टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम
and can save many things which we are going to discuss. One more question, whether this scheme is applicable only on the companies or LLP can also take the benefit of this scheme. In March 2020 itself, Ministry came with the one LLP settlement scheme, LLP settlement scheme 2020. According to that LLP settlement scheme, they have given an option कि even the LLPs which have made default for filing of 4 type of form, they can take benefit of that LLP settlement scheme. But once they come with this, we can say company settlement scheme, so they have mentioned not only the company, but all the LLPs can also take the benefit of this scheme. Now all the LLPs are under the preview of this scheme also. So if along with the companies, LLPs का भी कोई ऐसा फॉर्म है, कोई ऐसी रिटर्न है जो प्रीवियस ईयर्स में, प्रीवियस मंथ में they fails to file with the ROC, now under that scheme, under this scheme, they can file all those forms and they can take the benefit of this scheme. So this scheme is for all the defaulting companies. As I said, this scheme is applicable on all type of companies. However, still they have exclude 5 type of companies. First, the company against which action of final notice or strike off under section 248 of the act has already been initiated by the designated authority. So if a company, ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है, एमसी के मास्टर डाटा में जिसका नाम स्ट्राइक ऑफ हो चुका है, जिसको आरओसी स्ट्राइक ऑफ का नोटिस इशू कर चुकी है और स्ट्राइक ऑफ का सर्टिफिकेट इशू कर चुकी है, वो कंपनी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती. तो फर्स्ट थिंग, कंपनी शुड बी एक्टिव टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम. सेकंड, ऐसी कंपनी जिसने अपना फाइल कर दिया है, उन्होंने बुक कर रखी है, ऐसी कंपनी जिसने अपना STK2 फाइल कर दिया है. STK2 का पर्पस है स्ट्राइक ऑफ करना सुयो मोटो. अगर मैंने सुयो मोटो अपना STK2 फाइल किया स्ट्राइक ऑफ करने के लिए, ऐसी कंपनी भी स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकती. तो फर्स्ट, जो कंपनी ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है. सेकंड, ऐसी कंपनी जो STK2 फाइल कर चुकी है. नाउ थर्ड, कंपनीज व्हिच हैव अमलगमेटेड. कंपनी जो ऑलरेडी अमलगमेट हो चुकी है, जिनका स्टेटस ऑलरेडी अमलगमेटेड हो चुका है, वो कंपनीज भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती. फोर्थ, वेयर एप्लीकेबल हैज बीन फाइल्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डोरमेंट स्टेटस. एज आई सेड कि कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर चुके हैं, वो नहीं ले सकते बेनिफिट. जिसने स्ट्राइक ऑफ की एप्लीकेशन फाइल कर दिया, वो नहीं ले सकते. अमलगमेटेड कंपनीज नहीं ले सकती. डोरमेंट कंपनीज बेनिफिट नहीं ले सकती. फोर्थ कैटेगरी इज द डोरमेंट कंपनी. फिफ्थ, ऐसी कंपनी जिसने अपना स्टेटस डोरमेंट करने के लिए फॉर्म फाइल कर दिया है, वो भी इसका बेनिफिट नहीं ले सकती. सिक्स्थ आएगी वैनिशिंग कंपनीज. So these are the 6 type of companies which cannot take benefit of this scheme, except that every company which is having the active status can take benefit of the scheme. Last 10 minutes I'm telling about the scheme. There is a question is coming in mind of all the professional की scheme तो बता रहे हैं, but scheme का benefit क्या है, हमें scheme से benefit क्या मिलेगा. So let's first discuss the benefit. First, under this scheme जो भी फॉर्म हम फाइल करेंगे, जो भी ओल्ड फॉर्म फाइल करेंगे, कोई एडिशनल फीस पे नहीं करनी पड़ेगी. एज वी नो, कंपनीज एक्ट में कुछ फॉर्म्स हैं जिसमें आपको, जैसे एनुअल फॉर्म, 100 रुपीज पर डे एडिशनल फीस देनी पड़ती है. कुछ फॉर्म्स हैं जिनमें एडिशनल फीस देनी पड़ती है 2 टाइम, 4 टाइम, 6 टाइम ऑफ द एक्चुअल फीस. तो अगर 100 रुपीज की बात करें, किसी कंपनी ने 2 साल पहले का AOC4 नहीं फाइल किया, आज की डेट में फाइल करने जाएंगे 7 दिन इंटू 100, 70,000 की एडिशनल फीस हो जाएगी. दैट हैज बीन रिलैक्स्ड. अगर आप इन 6 महीने में इस स्कीम का यूज करते हुए कोई भी पुराना फॉर्म फाइल कर देते हो, तो आपको कोई एडिशनल फीस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है. तो दिस इज द बेस्ट मूव बाय द मिनिस्ट्री कि दे वांट, इन्होंने मेंशन किया है सर्कुलर में कि स्कीम का पर्पस ही ये है कि कंपनी अपनी पुरानी सारे डिफॉल्ट, पुरानी सारी फाइलिंग कंप्लीट करके आज की डेट में अप टू डेट कंपनी बन जाए. सेकंड बेनिफिट, company second benefit, ROC shall withdraw all the prosecution pending regarding such return. अब अगर हमने कोई फॉर्म नहीं फाइल किया, कोई रिटर्न नहीं फाइल की, तो उस रिटर्न और फॉर्म के अगेंस्ट ROC ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दी थी. तो अंडर दिस स्कीम अगर हम वो फॉर्म फाइल कर देते हैं, तो ROC प्रोसिक्यूशन को भी विथड्रॉ करेगा. थर्ड, ROC ने कोई एडजुडिकेशन आपके ऊपर इन्वॉल्व कर दिया था कि आपने फॉर्म नहीं फाइल किया, इसलिए 454 में एडजुडिकेट कर दिया आपको. फॉर एन एग्जांपल, आज की डेट में क्या है कि अगर जैसे आपको MJT 14 30 डेज में फाइल करना होता है, आप 30 डेज में MJT 14 नहीं करते हैं, तो उसके बाद जब भी आप करते हैं, आप एडिशनल फीस तो पे करते हैं,
उसके साथ आरओसी एक एडजुडिकेशन नोटिस भेजता है कि आप 70,000, 1 लाख, 1,50,000 एडजुडिकेशन पेनल्टी पे करो। तो अब ऐसे जो भी पुराने फॉर्म जिसपे आरओसी ने कोई एडजुडिकेशन का नोटिस भेजा था या जिसपे आरओसी एडजुडिकेशन का नोटिस भेज सकता है, अगर वो फॉर्म हम स्कीम में फाइल करते हैं तो हमें कोई एडजुडिकेशन भी नहीं लगेगी। तो 3 मेजर बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट, एडिशनल फीस नहीं लगेगी, जो बहुत हैवी अमाउंट में हम लोग पे करते हैं। तो एज अ प्रोफेशनल, एज वी ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट हियर, तो आई विल सजेस्ट कि ऐसी कोई भी आपकी कंपनीज है जिन्होंने लास्ट एनी ईयर का कोई फॉर्म नहीं फाइल किया है, यू कैन टेक द बेनिफिट ऑफ द स्कीम। सेकंड, आरओसी आपको उस फॉर्म को लेट फाइलिंग के ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगाएगा, कोई एडजुडिकेशन नहीं लगाएगा। इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्कीम वो लोग आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट भी इशू करेंगे। वो इम्यूनिटी सर्टिफिकेट प्रूफ होगा कि आपने इस पीरियड में ये फॉर्म फाइल किया था, तो इसके लिए आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिल रहा है। बट इसको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट को ऑब्टेन करने का प्रोसेस क्या है? एज आई सेड कि ये स्कीम 6 महीने के लिए है, 1 अप्रैल 2020 टू 30 सितंबर 2020। आपका जो भी पेंडिंग फॉर्म आप 6 महीने में फाइल करो। वंस दिस 6 मंथ विल बी कंप्लीट, तो 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, एक सीएफएसएस करके नया फॉर्म आएगा। सीएफएस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कंपनी लॉ फ्रेश सेटलमेंट स्कीम। तो जो सीएफएसएस करके नया फॉर्म आएगा, आपको वो फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। उस फॉर्म में आपको वो सारे एसआरएन लिखने पड़ेंगे जिनके लिए आपको इम्यूनिटी चाहिए, और वो फॉर्म आप मिनिस्ट्री को फाइल करोगे। उसके बाद आरओसी आपको एक इम्यूनिटी सर्टिफिकेट इशू करेगा। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग द स्कीम। अब इस स्कीम को समझने के लिए आई हैव प्रिपेयर्ड सम क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये स्कीम सिर्फ एनुअल फाइलिंग फॉर्म के लिए है कि एवरी टाइप ऑफ फॉर्म के लिए है? बिकॉज ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा माइंड में ये आता है कि सिर्फ एनुअल फाइलिंग फॉर्म जैसे कि एमजीटी 7, केओसी 4 इस स्कीम में फाइल कर सकते हैं, या हमारा कोई भी फॉर्म पेंडिंग था हम इस स्कीम में फाइल कर सकते हैं? तो आई विल आंसर दिस कि अंडर दिस स्कीम एनी टाइप ऑफ फॉर्म कैन बी फाइल्ड। आप किसी भी फॉर्म का बेनिफिट ले सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने आज 1 साल पहले कोई अलॉटमेंट ऑफ शेयर किया था राइट, आपने उसका PS3 फाइल करना भूल गए, आज तक नहीं फाइल हुआ, तो आज की डेट में स्कीम के अंदर उस फॉर्म को फाइल करो, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। हमने कोई डायरेक्टर को रेगुलराइज करना था या अपॉइंट करना था, कर दिया, रेजोल्यूशन पास कर दिया, बट फॉर्म फाइल करना भूल गए थे, इस स्कीम में फाइल करो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। So this scheme is not only for the annual form, this is for the all the form except, अब मिनिस्ट्री कुछ भी लेके आती है तो कुछ चीजों को छोड़ देती है। उन्होंने सभी फॉर्म्स को इंक्लूड किया और 2 टाइप ऑफ फॉर्म को एक्सक्लूड कर दिया अभी भी। फर्स्ट, SF7 फॉर इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल। जब कंपनी अपनी ऑथराइज कैपिटल इंक्रीज करती है तो SF7 फाइल करती है। अगर किसी कंपनी का SF7 पेंडिंग है फाइलिंग के लिए, तो आप इस स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं ले सकते हो। इस स्कीम में SF7 को एक्सक्लूड कर दिया है। सेकंड, चार्जेस, CHG1, CHG4, CHG8, CHG9, ये चारों फॉर्म भी इस स्कीम का पार्ट नहीं बनेंगे। इनमें से आप SF7 और चार्ज का कोई भी फॉर्म में आपका डिले है तो आप इस स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इन 5 फॉर्म को छोड़ के जो मर्जी फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं, आप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी कुछ पर्सन को हमेशा कंफ्यूजन आता है हमें कि यार फिर भी ध्यान नहीं रहता कौन सा फॉर्म हम बेनिफिट ले सकते हैं। तो एमसी की साइट पे जब हम लॉगिन करते हैं, एमसी की साइट पे जाते हैं mc.gov.in, लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉलम आ रहा है, वहां पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ फॉर्म रिक्वायर्ड टू फाइल अंडर दिस स्कीम। वहां पे पूरी फॉर्म की लिस्ट दी हुई है, 76 फॉर्म है। कंपनीज एक्ट 1956 के भी कुछ फॉर्म है, 2013 के भी कुछ फॉर्म और LLP के भी। वहां पूरी लिस्ट दी हुई है, तो हम वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और उस लिस्ट में से देख सकते हैं कि कौन से फॉर्म के लिए बेनिफिट है, कौन से फॉर्म के लिए नहीं है। वन इन शॉर्ट, आवर रिमेम्बरेंस, आई विल से 2 टाइप ऑफ फॉर्म फॉल नहीं करते। SF7 जो ऑथराइज कैपिटल बनाने के लिए वो फॉल नहीं करेगा, चार्जेस के जो फॉर्म है वो फॉल नहीं करेंगे, बाकी सभी फॉर्म इस स्कीम में फॉल कर जाएंगे। थर्ड आता है, अब इतना तो हमें क्लियर हो गया कि सभी टाइप के फॉर्म फाइल कर सकते हैं, सिर्फ एनुअल फाइलिंग का नहीं। सेकंड, 2 फॉर्म को छोड़ के कोई भी फॉर्म फाइल हो जाएगा। थर्ड आता है, क्या फॉरेन कंपनीज को भी ये स्कीम एप्लीकेबल होगी, क्या वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं? फॉरेन कंपनी से यहाँ मीनिंग है ब्रांच ऑफिस, लाइजन ऑफिस। काफी फॉरेन कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड है, वो अपना ब्रांच ऑफिस और लाइजन ऑफिस इंडिया में ओपन करते हैं। फिर उनको एनुअली बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ती है FC3 में, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है FC4 में। तो वो लोग अगर कुछ ऐसा फॉर्म फाइल करते हैं तो क्या उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा? यस, फॉरेन कंपनीज भी इस स्कीम का बेनिफिट ले सकती है।
तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंपनीज एक्ट सिर्फ कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विल टेक द बेनिफिट, company incorporated in India will take benefit, LLPs will take benefit, or foreign company shall also take the benefit of this scheme. अब क्वेश्चन आता है, एज वी डिस्कस कि एडिशनल फीस नहीं लगेगी, कोई प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगी, कोई एडजुडिकेशन नहीं लगेगी, बट क्या कंपाउंडिंग और कंडोनेशन से भी बच जाएंगे? नहीं। अब जिस फोन के लिए कंपाउंडिंग और कंडोनेशन है वहां पे इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया, उसका मैं एग्जांपल देता हूँ। कोई भी कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल करना पड़ता है तो वो एमडीटी 14 में फाइल होता है विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी वो 30 डेज में नहीं फाइल करती है तो 300 दिन तक फाइल करती है तो एडिशनल फीस के साथ पे कर देती थी। और जैसे ही 300 दिन क्रॉस होते हैं तो एमडीटी 14 फाइल ही नहीं होता है। एमडीटी 14 में एरर आता है कि पहले आप कंडोनेशन करवा के आओ फिर आपका एमडीटी 14 फाइल होगा। तो ऐसे केसेस जैसे एमडीटी 14 अगर हमारा 300 दिन से पुराना है तो हम इस स्कीम का बेनिफिट अगर हमें लेना है तो पहले हमें कंडोनेशन करवानी पड़ेगी, कंडोनेशन का ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा, फिर हम एमडीटी 7 इस स्कीम में फाइल करके अपनी एडिशनल फीसिस को सेव कर सकते हैं। बट अगर हम बोले कि 300 दिन से ज्यादा हो गया और हमें डायरेक्ट बेनिफिट लेना तो हमें डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दीज थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड। बट हाँ, 300 दिन तक है तो एमडीटी 14 का कोई इशू नहीं है। और ये वाला रिस्ट्रिक्शन कुछ ही फॉर्म्स पे है, एमडीटी 14 पे रिस्ट्रिक्शन है, बाकी फॉर्म्स पे नहीं है, बाकी आपके इजीली फाइल हो जाएंगे 300 दिन के बाद भी। तो वी हैव टू चेक कि कोई एमडीटी 14 अगर हम फाइल कर रहे हैं तो पहले हम कंडोन करवाएं फिर हम स्कीम का बेनिफिट लेने जाएं। 6th क्वेश्चन इज लाइक, हाँ अब क्या इस स्कीम के थ्रू क्या अगर हम स्कीम में सारी अपनी फाइलिंग पूरी कर देते हैं, सारी एनुअल फाइलिंग, क्या हमारी डिस्क्वालिफिकेशन पे डायरेक्टर्स की रिमूव हो जाएगी? बिकॉज वी नो कि बहुत सारी कंपनीज को 4-5 लाख डायरेक्टर्स को कंपनीज को पीछे मिनिस्ट्री ने डिस्क्वालीफाई कर दिया डायरेक्टर्स को जस्ट बिकॉज कि उन्होंने अपनी एनुअल फाइलिंग पूरी नहीं की थी। क्या वो लोग भी इसका बेनिफिट ले सकते? आई विल से नो। डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने का कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है। इवन कुछ पर्सन्स ने हाई कोर्ट में जाके रिट पिटीशन लगा के स्टे ऑर्डर लिया है, दैट इज डिफरेंट। अगर कंपनीज एक्ट की बात करें तो कोई प्रोविजन ही नहीं है रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन का। इवन अंडर दिस स्कीम आल्सो डिस्क्वालिफिकेशन आपकी रिमूव नहीं हो सकती। अब डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं हो सकती तो सेकंड क्वेश्चन आता है, ऐसी कंपनी जिसके सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई है वो कैसे बेनिफिट लेगी इसकी? तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि सेक्शन 167 है कंपनीज एक्ट का, वो बोलता है कि अगर आपके सारे डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आपके प्रमोटर नया डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। प्रमोटर जनरली शेयर होल्डर्स होते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक जनरल मीटिंग कॉल कर लेंगे, नया डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। अब अपॉइंट तो हो गया, बस उसका फॉर्म कैसे फाइल हो, तो उसके लिए उनको वो नया डायरेक्टर आरओसी के बैक हैंड से अपॉइंट करना पड़ेगा, बैक हैंड की सर्विसेज लेनी पड़ेगी उनको। फिजिकल में डॉक्यूमेंट आरओसी में सबमिट होंगे और बैक हैंड से आरओसी एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। जब एक डायरेक्टर अपॉइंट करेगा उसके डीएससी लगा के हम दूसरा डायरेक्टर भी अपॉइंट कर लेंगे, और जब 2 डायरेक्टर हो जाएंगे तो हम फिर सारे फॉर्म्स उनके डीएससी से फाइल कर देंगे। ऐसे करके हम बेनिफिट ले सकते हैं इस स्कीम का जहां सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है। तो डिस्क्वालिफिकेशन के केस में डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव नहीं होगा, आपको नए डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करने पड़ेंगे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज, एक कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दिया आरओसी ने, आरओसी ने जब कंपनी स्ट्राइक ऑफ कर दी है तो स्ट्राइक ऑफ कंपनी कैसे बेनिफिट ले? बिकॉज हमने स्टार्टिंग में तो डिस्कस किया है कि स्ट्राइक ऑफ कंपनीज आर आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ दिस स्कीम। तो अगर स्ट्राइक ऑफ कंपनी को बेनिफिट लेना है तो उसके लिए सबसे बेटर वे है, फर्स्ट वो एक रिवाइवल एप्लीकेशन फाइल करे मिनिस्ट्री ऑफ सॉरी एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी उस कंपनी को रिवाइव करेगा, बट मेक श्योर कि रिवाइवल ऑर्डर आपको सितंबर से पहले मिल जाए। तो एनसीएलटी रिवाइव करेगा, रिवाइव करते ही आप अपनी सारी फाइलिंग पूरी कर लो, आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी। अदरवाइज वी हैव सीन द केसेस कि कंपनी के 8-8, 10-10 सालों की फाइलिंग पेंडिंग है, 8-10 साल की फाइलिंग पेंडिंग है, और जब कंपनी रिवाइवल करा के आती है तो जब एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है तो वो 8 लाख 9 लाख तक एडिशनल फीस पहुंच जाती है। तो आई विल सजेस्ट कि आप रिवाइव करा के स्कीम का बेनिफिट लोगे तो आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी है, सिर्फ नॉर्मल फीस जो 300 से 600 रुपए पर फॉर्म होती है आपको पे करनी पड़ेगी। थर्ड आता है वेदर डोरमेंट कंपनी क्या बेनिफिट ले सकती है इसका। गवर्नमेंट कंपनी को भी बेनिफिट लेना तो सेम प्रोसेस है, पहले एमएससी 1 फॉर्म फाइल करके अपना स्टेटस एक्टिव करो, एक्टिव करने के बाद अपनी सारी फाइलिंग पूरी कर लो, आपको स्कीम का बेनिफिट मिल जाएगा। तो 3 केसेस हमने डिस्कस किए जहां सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है, बैक हैंड से डायरेक्टर अपॉइंट करो, स्कीम का बेनिफिट लो। जहां कंपनी स्ट्राइक ऑफ है, रिवाइवल कराओ, स्कीम का बेनिफिट लो। जहां कंपनी डोरमेंट है, एक्टिव में आओ और
फाइल कर दो। अब क्वेश्चन आता है कि क्या DIR3 KYC भी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं? एज वी नो, ऑल द पर्सन हु इज हैविंग डिन नंबर, एवरी ईयर उन्हें एक DIR3 KYC फॉर्म फाइल करना पड़ता है मिनिस्ट्री के पास। ड्यू डेट जिसकी होती है 30 सितंबर, तो एवरी ईयर फाइल करना पड़ता है। अगर किसी ने लास्ट ईयर नहीं किया था तो उसका डिन का स्टेटस तो चेंज हो जाएगा डीएक्टिव, और उसको अगर आपको फाइल करेगा तो 5,000 रुपए एडिशनल फीस पे करनी पड़ती है। तो DIR3 KYC को भी उन्होंने इस स्कीम के अंदर ले आए हैं। अगर इस स्कीम में आप DIR3 KYC फाइल करते हैं तो आपको कोई एडिशनल फीस नहीं देनी पड़ेगी। तो वी मेक श्योर हमारे ऐसे जितने भी डायरेक्टर हैं जिनके DIR3 KYC फाइल करने थे, अब उनके DIR3 KYC हम फाइल कर सकते हैं विदाउट एनी एडिशनल फीस। नेक्स्ट आता है एक्टिव फॉर्म। लास्ट ईयर मिनिस्ट्री एक नया फॉर्म लेके आई थी, एक्टिव फॉर्म 20A, कि सभी कंपनीज को अपना एक्टिव फॉर्म फाइल करना है। हाउएवर कुछ कंपनीज नहीं कर पाई थी, तो अगर आज की डेट में वो कंपनी करती तो उन्हें 10,000 रुपए एडिशनल फीस देनी पड़ेगी, 10,000 रुपीज एडिशनल फीस। तो एक्टिव फॉर्म को भी स्कीम के अंदर उन्होंने फॉल कर लिया है। तो हमारी ऐसी कंपनी जिनका एक्टिव नहीं फाइल हुआ है, हम उनकी एडिशनल फीस भी बचा सकते हैं बाय फाइलिंग ऑफ फॉर्म अंडर दिस स्कीम। अब एक क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी CFS फॉर्म फाइल किए बिना स्कीम का बेनिफिट ले सकती है? फॉर एन एग्जांपल, मैं 6 महीने के अंदर अपने 8-10 फॉर्म फाइल करता हूँ, लेट फीस जिनके ऊपर एडिशनल फीस लगनी थी बट नहीं लगी, मैंने अपने फॉर्म फाइल कर लिए, बट 6 महीने के बाद मैंने CFS फॉर्म नहीं फाइल किया, तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? अब बेनिफिट लेने के लिए जो प्रोसेस इन्होंने मेंशन किया है, 6 महीने की स्कीम है, जैसे ही सितंबर क्लोज होता है, नेक्स्ट 6 महीने में आपको CFS फॉर्म फाइल करना है। 6 महीने का टाइम दिया है, 6 महीने में CFS फॉर्म फाइल करना है। फॉर्म फाइल करने के बाद आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप फॉर्म नहीं फाइल करते तो आपको इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इम्यूनिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आरोपी आपको एडजुडिकेशन कर सकता है, प्रोसिक्यूशन कर सकता है। तो जैसे ही आपकी सारी फाइलिंग पूरी हो जाती है और सितंबर क्लोज हो जाता है, तो सितंबर के बाद नेक्स्ट 6 मंथ में आपको CFS फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बिना आप स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अलोंग विद दैट, अब इसके साथ क्वेश्चन आता है चार्जेस के केस में। जैसे मैंने बोला SF7 इंक्रीज इन ऑथराइज कैपिटल के लिए, और चार्जेस के फॉर्म इस स्कीम में फॉल नहीं करते हैं। तो जो चार्जेस के फॉर्म जिनकी ड्यू डेट लॉकडाउन पीरियड से, जो इंडिया में जो लॉकडाउन हुआ है उससे पहले थी, डेफिनेटली उनको तो कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। बट अब जिनकी ड्यू डेट इस लॉकडाउन पीरियड में फॉल कर रही है, उनको तो बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रैक्टिकली अभी तक मिनिस्ट्री ने नहीं दिया है, बट देयर इज द सिचुएशन कि एटलीस्ट उन चार्जेस के फॉर्म के लिए जो इस लॉकडाउन पीरियड में फॉल कर रहे हैं, मिनिस्ट्री कैन गिव रिलैक्सेशन इन फ्यूचर। अब सेकंड क्वेश्चन आता है, इस स्कीम के साथ साथ, ये स्कीम में अभी तक तो हम डिस्कस कर रहे थे पुराने ऐसे फॉर्म जो हमने फाइल नहीं किए थे, कैसे एडिशनल फीस बचाएंगे। पर उन पुराने फॉर्म के साथ अब जो इस 6 मंथ में फॉर्म फाइल कर रहे हैं उनका क्या? फॉर एग्जांपल, एवरी कंपनी हैव टू फाइल MSME 1 एवरी हाफ ईयर विद इन 30 डेज ऑफ क्लोजर ऑफ हाफ ईयर। तो हमारा हाफ ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च को, 30 डेज में हमें MSME 1 फॉर्म फाइल करना है। तो हम कैसे फाइल करें? अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन भी नहीं ओपन होता, तो MSME 1 कैसे फाइल करें? तो अंडर दिस स्कीम आपको जो फॉर्म इस पीरियड में भी फाइल करने, तो आप डिले फाइल करते हो तो आपको कोई प्रोसिक्यूशन एडजुडिकेशन नहीं लगेगी, कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। तो जनरली एवरीवन वाज आस्किंग कि MSME 1 की ड्यू डेट क्या है। प्रैक्टिकली MSME 1 की ड्यू डेट 30 अप्रैल है, बट ड्यू टू दिस स्कीम MSME 1 अगर हम 30 सितंबर तक भी फाइल करते हैं तो कोई इशू नहीं है। सेकंड आता है DPT3। एवरी कंपनी हैव टू फाइल DPT3 टिल 30th जून। अब 30th जून तक DPT कैसे फाइल करे? बिकॉज अभी तो ये सारा लॉकडाउन और मैनी इश्यूज आर गोइंग देयर, कंपनीज रिज्यूम करेगी, वर्क स्टार्ट करेगी, तो DPT3 की ड्यू डेट 30th जून है। तो ड्यू टू दिस स्कीम अगर हम 30 सितंबर तक भी फाइल करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी प्रोसिक्यूशन नहीं लगेगा। तो आई विल से इस 6 मंथ में जो भी फॉर्म्स की ड्यू डेट फॉल करती है, अगर आपको 30 सितंबर तक भी फाइल करते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं, कोई आपको एडिशनल फीस देने की, कोई इशू देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लाइक DIR3 KYC, वो भी तो हमें फाइल करना है अभी सितंबर तक, तो इन किसी भी फॉर्म में आपको एडिशनल फीस पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज रिलेटिंग टू द नेम अप्रूवल। अब नेम अप्रूवल का फॉर्म फाइल किया लॉकडाउन से जस्ट पहले, नेम अप्रूव हो गया, अब 20 दिन में हमें 22+ फाइल करना होता है। ड्यू टू मैनी रीजन कि मेरे पास DSC नहीं है, ड्यू टू लॉकडाउन डॉक्यूमेंट नहीं बना पा रहा, एनी रीजन हम नहीं फाइल कर पाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे? 20 दिन बाद नाम तो एक्सपायर हो जाएगा। तो ICSI ने विद मिनिस्ट्री एक वेबिनार किया था, तो दे हैव सजेस्टेड इन दिस वेबिनार
आपका ऐसा कोई केस है तो आप टिकट रेज कर दीजिए, आपको एक्सटेंशन दे देंगे वो नेम अप्रूवल की, आपको एक्सटेंशन दे देंगे वो फॉर्म फाइल करने की पीरियड की। दे विल एक्सटेंड योर टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द फॉर्म। फॉर एन एग्जाम्पल, आज की डेट में हमारा कोई फॉर्म हमने लॉकडाउन से पहले फाइल किया तो लॉकडाउन पीरियड में वो रिसबमिशन में आ जाता है, तो क्या करेंगे? तो सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो कि आपको टिकट रेज करनी पड़ेगी और वो आपको एक्सटेंड दे देंगे टाइम फॉर फाइलिंग ऑफ दिस टाइप ऑफ फॉर्म। So these are the all benefits and all questions which I have discussed about the CFSS. Now I'm going to take the second amendment under Companies Act along with the CFS, so later on we can take the question. Second amendment, अभी तक तो हमने डिस्कस किया कि पेंडिंग फॉर्म कैसे फाइल करेंगे, जो फॉर्म इस पीरियड में फॉल कर रहे हैं उसको कैसे फाइल करेंगे। बट इसी के साथ अब एक सेकंड क्वेश्चन आता है, अब हमें कोई रेजोल्यूशन पास करना है, चाहे बोर्ड मीटिंग हो चाहे जनरल मीटिंग हो, इस पीरियड में वो हम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज जनरल मीटिंग करनी है, लॉकडाउन में अलाउड नहीं है आपको पीपल गैदर करना, बोर्ड मीटिंग में आपको अलाउड नहीं है पीपल गैदर करना, तो वो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मिनिस्ट्री ने ना 3 डिफरेंट सर्कुलर पास किए थे। एक सर्कुलर पास किया था 24 मार्च को, एक अमेंडमेंट लेके आए थे 19 मार्च को, और एक अमेंडमेंट अभी लेटेस्ट लेके आए हैं 8 अप्रैल को, 4 दिन पहले। उनके थ्रू दे हैव मेंशन फॉर द पर्पस ऑफ रिलैक्सेशन टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू कॉर्पोरेट टू होल्ड देयर बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग फॉर अर्जेंट मैटर, फॉर पासिंग ऑफ अर्जेंट रेजोल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं? बिकॉज देयर आर द मेनी मैटर्स, मेनी थिंग्स कि जिसको आप अभी स्टॉप करके नहीं रख सकते हैं, मेनी रेजोल्यूशन जिसको आपको पास करना बहुत अर्जेंट है, तो वो कैसे कर सकते हैं? तो दे हैव पास 2-3 डिफरेंट सर्कुलर, और उसके थ्रू दे हैव गिवन द वे आउट कि आप कैसे वो सब कुछ कर सकते हैं। फर्स्ट, दिस सर्कुलर, as we know, as per section 173 of the Companies Act, every company except small company and one person company have to hold at least 4 board meetings of the board of directors during a financial year. Second, maximum gap between 2 board meetings can be 120 days. Third, there is a question क्या quarterly भी every quarter भी meeting होनी mandatory है? Earlier there was a situation, but now they have relaxed कि every quarter होने का कोई इशू नहीं है, साल में 4 होनी मैंडेटरी है और 2 के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होगा। अब कुछ ऐसी कंपनी थी जिन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग जनवरी में की थी या दिसंबर लास्ट वीक में की थी, अब उनके 120 दिन एक्सपायर हो रहे हैं इस लॉकडाउन पीरियड। अब वो कंपनी क्या करे? मीटिंग कर नहीं सकती है, 120 दिन से ज्यादा का गैप हो जाएगा तो आपका लॉ का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो मिनिस्ट्री हैव गिवन अ रिलैक्सेशन, दे हैव सेड कि अगर आप इस पीरियड में फ्रॉम अप्रैल टू जून, अप्रैल टू सितंबर पीरियड के लिए उन्होंने वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है कि आपकी 2 बोर्ड मीटिंग में मैक्सिमम गैप 120 की जगह 180 दिन हो सकता है। ये वन टाइम रिलैक्सेशन है और इस 2 क्वार्टर के बीच। मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, कंपनी की लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी 28 फरवरी को, अब इसकी ड्यू डेट क्या है नेक्स्ट मीटिंग की? 28 फरवरी को हुई, जनरली होते हैं 120 दिन, मार्च अप्रैल मई जून, इसको 28 जून से पहले पहले अपनी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी। बट फॉर एन एग्जांपल लॉकडाउन नहीं ओपन होता है या इतनी गैदरिंग नहीं कर पाएंगे या ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, 28 जून तक भी हम बोर्ड मीटिंग नहीं हेल्ड करते, तो दे हैव गिवन द रिलैक्सेशन कि आप इस 120 दिन को 180 दिन काउंट कर सकते हैं। तो अगर मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग 28 फरवरी को हुई थी तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग की मेरी ड्यू डेट आ जाएगी 26 अगस्त, 180 दिन। एक दो और एग्जांपल मैंने मेंशन किए हुए हैं। अगर लास्ट बोर्ड मीटिंग मेरी 2 जनवरी को हुई थी तो अब मेरी ड्यू डेट क्या होगी? 4 महीने की बात करूंगा तो ड्यू डेट मेरी अप्रैल में फॉल हो जाएगी, सॉरी मई में। बट अगर मैं बात करता हूँ 180 दिन की, तो मेरी ड्यू डेट 2 जनवरी को जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसके लिए ड्यू डेट आएगी 30 जून। सेम एग्जांपल, मेरी लास्ट बोर्ड मीटिंग 25 दिसंबर 2019 में हुई थी, 2020 में कोई बोर्ड मीटिंग ही नहीं हुई। अब उस केस में भी आपको 180 दिन का प्रोविजन अवेलेबल है। तो अगर आपकी 25 दिसंबर को लास्ट बोर्ड मीटिंग हुई थी तो नेक्स्ट साल 22 जून तक कर सकते हो। तो मिनिस्ट्री ने वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है, वन टाइम रिलैक्सेशन इन दिस 6 मंथ कि आपकी 2 बोर्ड मीटिंग में 180 दिन का गैप मैक्सिमम हो सकता है। दिस इज अ वेलकम मूव कि उन्होंने 120 दिन को इंक्रीज करके 180 दिन कर दिया है। सेकंड आता है बोर्ड मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एज वी नो, जब कंपनीज एक्ट 2013 पास हुआ था फ्रॉम 1 अप्रैल 2014, तो सेक्शन 173 इज द सेक्शन फॉर द बोर्ड मीटिंग। इन दैट सेक्शन दे हैव मेंशन
कि कंपनीज कैन इवन सॉरी द डायरेक्टर कैन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, वो मीटिंग कैसे कॉल करेंगे, वो कंप्लीट प्रोसेस उन्होंने मेंशन किया रूल 3 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर रूल 2014। रूल 3 में फुल फ्लेज प्रोसेस मेंशन किया हुआ है कि आप बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैसे करोगे। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। देन दे केम इन द रूल 4। उन्होंने रूल 4 में लिखा ऐसे 5 मैटर्स है जिस केस में आप अगर मीटिंग करते हो बोर्ड मीटिंग, तो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रेजेंट नहीं हो सकते। 5 मैटर उन्होंने मेंशन किया, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, डिसीजन रिगार्डिंग मर्जर अमलगमेशन, मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी फॉर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर ऐसे 5 मैटर है तो आप अपनी बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स को अलाउ नहीं करोगे फॉर पार्टिसिपेशन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। फिर 2017 में एक अमेंडमेंट लेके आए कि अगर आपकी फिजिकल कोरम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए कोरम के लिए, आपके 2 डायरेक्टर फिजिकल प्रेजेंट है, फिर अदर डायरेक्टर अगर पार्टिसिपेट करना चाहे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। बट इस सारे प्रोसेस में एटलीस्ट मिनिमम जो कोरम है वो तो एक जगह पे प्रेजेंट होनी चाहिए। आज के दिन लॉकडाउन जब अपने घर से भी मूव नहीं कर सकते, तो उस केस में हम मिनिमम कोरम भी एक जगह कैसे प्रेजेंट करें। तो उसके लिए उन्होंने रिलैक्सेशन दिया 19 मार्च को एक सर्कुलर पास करके। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिलैक्सेशन इज फ्रॉम 19th मार्च टू 30th जून। डेट्स आर वेरी क्रूशियल फॉर अस बिकॉज दे आर द प्रोफेशनल डेट्स, हमारे लिए बहुत क्रूशियल है। जो ये रिलैक्सेशन अवेलेबल होगी बोर्ड मीटिंग की, ये 19th जून से 30th अप्रैल के सॉरी 30th जून तक के लिए अवेलेबल है, सिर्फ इस पीरियड के लिए। अगर आप 30th जून के बाद जाना चाहेंगे तो ये आपको अवेलेबल नहीं होगी। They have mentioned कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलैक्सेशन अगर 30th जून तक आप कोई बोर्ड मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं तो आपको फिजिकल कोरम की कोई जरूरत नहीं है। आपके सारे डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड कर सकते हैं, वो कोरम में भी काउंट होंगे। तो फिजिकल कोरम की रिक्वायरमेंट ही इन्होंने रिमूव कर दी टिल 30th जून। तो अब आज की डेट में मुझे कोई रेजोल्यूशन पास करना है और मैं तो बेस्ट वे है कि मैं बोर्ड में हैंड के रिक्वायरमेंट कंपनी की हमें एवरी क्वार्टर एक बोर्ड मीटिंग होल्ड करनी पड़े, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट कि हमें साल में 4 बोर्ड मीटिंग करना मैंडेटरी टू रिपोर्ट द प्रोसीडिंग। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग अबाउट द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आप इनके थ्रू बोर्ड मीटिंग करते हो तो इट इज मैंडेटरी कि Am I audible? Yes, yes, audible. Now you become audible. We had lost you in between. Yeah, sorry. हाँ सर, अगेन आई विल स्टार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन आता है, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो बोर्ड मीटिंग करेंगे क्या उसकी रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है? तो फॉर दिस क्वेश्चन यस, एज पर रूल 3 अगर कोई भी कंपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग करती है तो कंपनी को पूरी मीटिंग की रिकॉर्डिंग अपने पास रखना मैंडेटरी है। कब तक रखना मैंडेटरी है? जब तक उस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट नहीं हो जाती, उस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल साइन नहीं हो जाते, तब तक के लिए आपको वो रिकॉर्डिंग रखना मैंडेटरी है। तो अगर हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मेंटेन हो। सेकंड, थर्ड क्वेश्चन, क्या टेली कॉन्फ्रेंस के थ्रू बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? अभी तक हम बात कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, बट क्या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं? नो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग अलाउड नहीं है। दे हैव मेंशन कि आपकी बोर्ड मीटिंग जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी उसमें ऑडियो प्लस विजुअल बोथ थिंग्स शुड बी देयर। तो आपकी टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बोर्ड मीटिंग इज इनवैलिड। टेली कॉन्फ्रेंसिंग से कोई अलाउड नहीं है प्रेजेंट होना। क्या जो डायरेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे कोरम में काउंट होंगे? यस।
all the director who participate to the video conferencing shall be count for the quorum. फिर एक इशू आता है कि अगर हम बोर्ड मीटिंग करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो हमारा प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग क्या होगा, कौन से प्लेस को बोर्ड मीटिंग मानेंगे? तो फॉर द पर्पस ऑफ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल से एज पर रूल 3 जो प्लेस आपने नोटिस में लिखा होगा वो प्लेस आपका प्लेस ऑफ बोर्ड मीटिंग होगा। Who shall be responsible for all the arrangement of this video conferencing facility? Chairman and company secretary. If कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है, then chairman and company secretary are the responsible for all the arrangement. अब कुछ बोर्ड मीटिंग होती है जहां ये मैंडेटरी होता है कि आपको एक स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रजिस्टर रखना है, तो वो स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी रजिस्टर आप कौन से प्लेस पे रखेंगे? तो दैट स्टैट्यूटरी रजिस्टर विल बी कीप एट द प्लेस जो आपने नोटिस में बोर्ड मीटिंग का टाइम दिया है। So these are the provision regarding the holding of board meeting through video conferencing. Now I am moving to my third topic, that is relating to the holding of general meeting through video conferencing, which is more crucial than the board meeting. Legally, Companies Act 2013 doesn't specify any provision to allow the shareholder to hold a meeting through video conferencing. Companies Act में बोर्ड मीटिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू करने के प्रोविजंस है, बट कंपनीज एक्ट में जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करने के कोई प्रोविजन नहीं है। जनरल मीटिंग में आपको रेजोल्यूशन पास करना है तो आप वोट बाय शो ऑफ हैंड कर सकते हो, वोट बाय ई वोटिंग कर सकते हो, वोट बाय पोस्टल बैलेट कर सकते हो, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जनरल मीटिंग करने का कोई प्रोविजन नहीं है। रिसेंटली एमसीए ने एक सर्कुलर पास किया है 14 अप्रैल सर्कुलर नंबर 14 2020 ऑन 8 अप्रैल 2020। 4 दिन पहले ही कंपनी ने वो सर्कुलर पास किया है ऑन 8 अप्रैल 2020, पासिंग ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। बिकॉज बहुत सारे ऐसे रेजोल्यूशन है जिनके लिए हमें अभी पास करना मैंडेटरी था, बट ड्यू टू दिस कोविड-19 एंड ड्यू टू दिस लॉकडाउन सिचुएशन कंपनीज आर नॉट एबल टू होल्ड द जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में हमें पता है लिस्टेड कंपनीज, अगर पब्लिक कंपनीज की बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ नंबर ऑफ द शेयर होल्डर, अब वो लोग पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे रेजोल्यूशन पास करें? तो उसके लिए दे हैव कम विद अ स्पेसिफिक सर्कुलर कि जनरल मीटिंग कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी। सो फर्स्ट इस सर्कुलर को एप्लीकेबल करने के लिए दो कंडीशन फुलफिल करनी है। इस सर्कुलर के थ्रू दे आर अलाउड only in case when passing of resolution is unavoidable and matter is urgent matter. They have mentioned in the circular कि आप इस सर्कुलर के थ्रू जनरल मीटिंग सिर्फ तभी कर सकते हैं जब आपका बहुत अर्जेंट मैटर है और जो आपकी सिचुएशन है वो अनअवॉइडेबल है, आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जनरल मीटिंग होल्ड करनी ही पड़ेगी। ओनली इन दैट केस यू कैन यूज द टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। नॉर्मल मैटर्स के केस में आपको इस स्कीम का कोई बेनिफिट नहीं है, आप इस स्कीम में रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जाना ही क्यों है, हम पोस्टल बैलेट के थ्रू मीटिंग क्यों नहीं कर लेते हैं? पोस्टल बैलेट नोटिस भेजते हैं, पोस्टल बैलेट के थ्रू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल किस पे है? पोस्टल बैलेट एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनीज पे और ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज जिनमें 1000 से ज्यादा मेंबर है, सिर्फ उन पे पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। और ये सर्कुलर में स्पेसिफिक लिखा है अगर कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट के थ्रू पास हो सकता है तो उस केस में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी यूज नहीं कर सकते। तो वी हैव टू मेक श्योर, फर्स्ट वी हैव टू चेक कि जो रेजोल्यूशन हमें पास करना है वो अर्जेंट मैटर हो और वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हो। सेकंड, जो रेजोल्यूशन पास करना है वो ऐसा रेजोल्यूशन नहीं होना चाहिए कि जो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी पास कर सकते हैं। इफ इट इज फिजिबल टू पास द रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट देन यू कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। अब आता है जनरल क्वेश्चन, ऑन विच टाइप ऑफ कंपनी दिस स्कीम इज एप्लीकेबल, दिस सर्कुलर इज एप्लीकेबल। ये सर्कुलर कौन सी कंपनीज को अलाउ करता है, कौन सी कंपनीज को बेनिफिट दे रहा है कि वो अपनी जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर ले? क्या वो स्मॉल को दे रहा है, क्या वो लिस्टेड को दे रहा है? तो एज पर दिस सर्कुलर they have include all type of companies, whether it is a small company, private company, public company, listed company, nidhi company, etc. All the companies can take benefit of this circular and those companies can hold their general meeting through video conferencing. So applicability all companies. Now what is the currency period of this scheme? हम ये सर्कुलर यूज कब तक कर सकते हैं? जैसे हमने बोर्ड मीटिंग में बात किया था कि रिलैक्सेशन 30 जून तक दी है, सेम इन द जनरल मीटिंग में भी उन्होंने रिलैक्सेशन जो दी है वो 30 जून तक दी है। हम इस स्कीम सर्कुलर के अंदर
30 जून तक ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं। 30 जून के बाद अगर आप ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना चाहोगे तो ये स्कीम आपको अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। हमें पता है कंपनीज एक्ट में 2 टाइप की जनरल मीटिंग होती है। एक तो होती है एनुअल जनरल मीटिंग, दूसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। तो क्या एजीएम भी इस सर्कुलर के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर सकते हैं? जो स्कीम में मेंशन किया है, स्कीम में उन्होंने बोला है कि आप अर्जेंट मैटर और अनअवॉइडेबल मैटर के लिए ही करोगे। एनुअल जनरल मीटिंग में हम जनरली जो मैटर लेते हैं 4 तो होते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस, बाकी होते हैं स्पेशल बिजनेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस सर्कुलर आप एनुअल जनरल मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं कर सकते। मैनी प्रोफेशनल हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मी, क्या हम एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू? तो आंसर इज ब्लैंकेट नो। AGM cannot be held through the video conferencing. So this scheme, this circular, this provision only applicable for the extraordinary general meeting. These are not applicable for the annual general meeting. तो सेकंड हमने डिस्कस किया, देयर आर 2 टाइप ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 होते हैं, ऑडिटर अपॉइंट करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करना, डायरेक्टर रीअपॉइंट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना। ये 4 बिजनेस भी आप इस सर्कुलर के थ्रू पास नहीं कर सकते। सो 2 रिस्ट्रिक्शन हो गई है। एक तो एजीएम नहीं कर सकते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सेकंड ऑर्डिनरी बिजनेस के लिए रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकते अंडर दिस सर्कुलर। तो दीज आर द 2 रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर द 2 बैरियर्स ऑफ दिस सर्कुलर। अब आता है कंपनी ने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जनरल मीटिंग की, ईजीएम की स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया। सेक्शन 117 ऑफ कंपनीज एक्ट कहता है आप जब भी कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो 30 डेज में आपको वो स्पेशल रेजोल्यूशन आरओसी में एमजीपी 14 फॉर्म में फाइल करना है। 30 डेज में नहीं करते तो आपको फीस पे करनी पड़ती है। अब वो जो 30 डेज का टाइम पीरियड था वो दिस पीरियड ऑफ टिल 30 जून उसको 60 डेज कर दिया है। अगर आप कोई बोर्ड जनरल मीटिंग ईजीएम आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हो, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हो, तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन आप उस ईजीएम से 60 दिन के अंदर आप एमजीपी 14 में फाइल कर सकते हो। तो वो 30 डेज का पीरियड बढ़ा के 60 दिन कर दिया है। नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस इन ब्रीफ कि ईजीएम होल्ड कैसे करनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। जब भी कोई मीटिंग की बात करते हैं तो पहला प्रोविजन होता है नोटिस, मीटिंग का नोटिस कैसे इशू होगा। फर्स्ट थिंग, अब जब सब लॉकडाउन है, कोई हमारे पास कोरियर सर्विस, स्पीड पोस्ट सर्विस अवेलेबल है नहीं, ओनली वन मोड इज अवेलेबल, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। आपको नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर उनकी ईमेल आईडी पे सेंड करना पड़ेगा। फर्स्ट, सभी की ईमेल आईडी पे नोटिस सेंड होगा। सेकंड, अगर कंपनी की वेबसाइट है तो आपको कंपनी की वेबसाइट के ऊपर भी आपको वो नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा। तो 2 चीजें करनी पड़ेगी, सभी को ईमेल करेंगे और कंपनी की वेबसाइट पे आप वो नोटिस को पब्लिश करेंगे। दोनों चीजें हो गई। अब क्वेश्चन आता है, अब मेरी प्राइवेट कंपनी है, मान लो 200 मेंबर हो सकते हैं, मेरी कंपनी में 150 मेंबर है, मेरे पास सभी की ईमेल आईडी नहीं है, तो अब मैं नोटिस कैसे दूंगा? तो as on this situation they have not given any solution in the circular, they have only mentioned कि अगर आपका ईमेल आईडी नहीं है तो आप जो साइट पे पब्लिश कर रहे हो और तो आपके शेयर होल्डर वहीं से चेक कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली आज की डेट में क्या है, जितने शेयर होल्डर की मेरे पास ईमेल आईडी है उनको तो मैं ईमेल पे भेज दूंगा, बट जिनकी ईमेल आईडी नहीं है वो कंपनी की वेबसाइट पे एक्सेस करके नोटिस पढ़ सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड, नोटिस में क्या लिखना है? सर्कुलर में स्पेसिफिकली मेंशन किया है जब आप जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे तो उस नोटिस में आपको क्लियर इंस्ट्रक्शन देने हैं कि कैसे एक शेयर होल्डर एक्सेस कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग और कैसे एक शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकता है इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग। तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें दोनों चीजों को फोकस करना पड़ेगा कि कैसे एक पर्सन एक्सेस कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, हमें ये नोटिस में मैंडेटरीली मेंशन करना है। सेकंड, आपको एक हेल्पलाइन नंबर मेंशन करना है, वो आपके रजिस्टर का होगा, रजिस्टर ऑफ ट्रांसफर एजेंट का होगा, किसी ऑथराइज्ड पर्सन का होगा, जो पर्सन शेयर होल्डर को हेल्प कर सकता है ऑन कॉल कि वो कैसे इस मीटिंग को एक्सेस करे। दिस इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू द नोटिस। नोटिस ईमेल से जाएगा, नोटिस वेबसाइट पे जाएगा, नोटिस में लिखा होगा कि कैसे एक्सेस करना है, पार्टिसिपेट करना है। नोटिस में एक फोन नंबर भी होगा जिसको शेयर होल्डर कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे पार्टिसिपेट करना है। अब सेकंड आता है
कि क्वेश्चन कि अब नहीं गया किसी शेयर होल्डर के पास ईमेल, बिकॉज ईमेल आईडी नहीं थी, तो क्या मीटिंग वैलिड मानी जाएगी, इनवैलिड मानी जाएगी? ये क्वेश्चन अभी मिनिस्ट्री की तरफ से भी पेंडिंग है। प्रैक्टिकली उन्होंने इस पे भी अभी कुछ नहीं बताया कि ऐसी मीटिंग वैलिड मानी जाएगी या इनवैलिड, या क्या प्रोसेस है। बट अगर हम जनरली देखते हैं सेक्शन 101 ऑफ द कंपनीज एक्ट, वो बोलता है if any accident omission to give notice or to non-participate of such notice by any member or other person who is entitled to such notice for any meeting shall not invalidate the proceedings of meeting। वो बोलता है कि अगर किसी एक्सीडेंट ओमिशन के कारण और नॉन कोई शेयर होल्डर को नोटिस नहीं जाता तो मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन वी कैन होल्ड दिस। सेकंड क्वेश्चन, नोटिस की बात डिस्कस हो गई है, कोरम। क्या जो पार्टिसिपेट करेंगे शेयर होल्डर थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वो कोरम में काउंट होंगे? कोरम शैल बी काउंट ऑल द शेयर होल्डर पार्टिसिपेटिंग थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तीसरा आता है प्रॉक्सी। एज वी नो कंपनीज एक्ट में सेक्शन है कि एक शेयर होल्डर अगर मीटिंग अटेंड नहीं करना चाहता तो वो अपने बिहाफ पे एक प्रॉक्सी अपॉइंट कर देता है, तो प्रॉक्सी उसके बिहाफ पे जाके मीटिंग अटेंड करता है। तो क्या प्रॉक्सी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी अपॉइंट कर सकते हैं? तो देयर इज अ क्लियर नो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज जो इसका पर्पस है ये है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है तो शेयर होल्डर जहां बैठा है वो खुद भी तो वीडियो पे प्रेजेंट हो सकता है, तो आप प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते हो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में। इट इज वेरी क्लियर। बट सम प्लेसेस पे क्या होता है कि बॉडी कॉर्पोरेट आपकी शेयर होल्डर है, कोई कंपनी आपकी शेयर होल्डर है, उस केस में आप कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आप कर सकते हो अपॉइंट, बट आप शेयर प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं कर सकते। सेम लाइक बोर्ड मीटिंग, यहाँ पे भी उन्होंने मेंशन किया कि जनरल मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग करना मैंडेटरी है। तो आप जो मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करेंगे उसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी, और सिर्फ रिकॉर्डिंग करना इनफ नहीं है। अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग कंपनी की वेबसाइट पे डालनी पड़ेगी। कब तक के लिए वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगी कहीं नहीं लिखा है, वो लाइफ टाइम का हो गया है, लाइक वी कैन से 8 इयर्स के लिए जो हम मिनट्स रखते हैं। अदरवाइज मिनिस्ट्री कुछ क्लैरिफिकेशन देगी। तो वी हैव टू बी क्लियर, अगर हम किसी शेयर होल्डर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करते हैं तो हमें उसकी रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। दूसरा, अगर वो पब्लिक कंपनी है और उस कंपनी की वेबसाइट है तो हमें उस वेबसाइट पे भी उसे पब्लिश करना पड़ेगा। दिस इज द मैंडेटरी थिंग। अब कंपनी क्या क्या फैसिलिटी देगी ड्यूरिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? फर्स्ट फैसिलिटी कंपनी देगी कि मीटिंग मस्ट प्रोवाइड टू वे कम्युनिकेशन। जो भी मोड, जो भी एप्लीकेशन कंपनी यूज करती है, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। शेयर होल्डर भी अपना डिस्कशन कर सकते हैं आपस में और डायरेक्टर्स के थ्रू। और फैसिलिटी टू रेज द क्वेश्चन, शेयर होल्डर को फैसिलिटी देंगे कि वो अपने क्वेश्चन रेज करे, या नोटिस में एक ईमेल आईडी देंगे कि शेयर होल्डर अपने क्वेश्चन उस ईमेल आईडी पे भेजे और वो क्वेश्चन डिस्कशन होंगे। तो ये फैसिलिटी शेयर होल्डर को दी जाएगी। क्वेश्चन आता है कि क्या मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर कितने पार्टिसिपेट कर सकते हैं? अब जब हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनी की और पब्लिक कंपनी की, तो कंपनी जो भी मोड, जो भी सॉफ्टवेयर, जो भी एप्लीकेशन यूज करती है, दे हैव टू मेक श्योर कि मिनिमम 1000 मेंबर पार्टिसिपेट कर सके, इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए। मिनिमम 1000 मेंबर ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस, मतलब फीफो बेस पे फर्स्ट 1000 मेंबर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब हम 1000 मेंबर की बात करते हैं या फीफो बेस की बात करते हैं तो कुछ शेयर होल्डर्स को एक्सक्लूड किया है। द लार्ज शेयर होल्डर, ऐसा शेयर होल्डर जो 2% या उससे ज्यादा शेयर होल्डिंग होल्ड करता है, उसको एक 1000 में और फीफो में एक्सक्लूड किया है। प्रमोटर, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डायरेक्टर एंड की मैनेजर पर्सनल, चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एग्जामिनेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, ऑडिटर ऑफ द कंपनी, इन पर्संस को फीफो में एक्सक्लूड किया है। ये पर्सन तो फीफो पहले भी आते हैं बाद में भी आते हैं, इनको तो अलाउ है अटेंड करना। टाइमिंग ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ मीटिंग, द फैसिलिटी ऑफ ज्वाइनिंग द मीटिंग शैल बी ओपन at least 15 minutes before the schedule of the meeting or shall not be closed till expiry of 50 meeting। तो जो भी हमारा शेड्यूल टाइम मीटिंग है उससे 15 मिनट पहले हम शेयर होल्डर्स को अलाउ कर देंगे ज्वाइन करना, और जो भी शेड्यूल एंड टाइम है उसके 15 मिनट के बाद तक उनको अलाउ है एग्जिट करना। अटेंडेंस, जितने भी शेयर होल्डर ऑनलाइन प्रेजेंट होंगे दे ऑल विल बी कंसीडर्ड एज quorum and will be participate in the attendance। अगर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर टू पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। द ऑडिटर एंड ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव,
अब एज वी आर ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो ये एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है। अगर कंपनी ईजीएम कर रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, तो ये मैंडेटरी है कि ऑडिटर या ऑडिटर का रिप्रेजेंटेटिव हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर shall be present in that video conferencing meeting. So this is one of the mandatory provision. ये हमें माइंड में रखना पड़ेगा। अब वोटिंग फैसिलिटी, अब वो वोट कैसे करेंगे? वोटिंग फैसिलिटी को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग मीटिंग। बिफोर मीटिंग पहले ऐसी कंपनी जो या तो लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज पे या जिनमें 1000 से ज्यादा मेंबर है, उस केस में तो उन्हें ई वोटिंग फैसिलिटी दी जाएगी जो बड़ी कंपनी पहले भी देती थी। और ऐसी कंपनी जिसमें 1000 से कम मेंबर है, दैट कंपनीज विल गिव ई वोटिंग फैसिलिटी। यहाँ पे ई वोटिंग का मतलब है जब हम नोटिस इशू करेंगे, उस नोटिस में हम एक ईमेल आईडी देंगे कंपनी की, शेयर होल्डर अपना वोट उस ईमेल आईडी पे सेंड करके अपना वोट कर सकते हैं। तो यहाँ ई वोटिंग के लिए वो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी कंसीडर कर रहे हैं। ये तो हो गया मीटिंग से पहले वोट करने की बात। अब करते हैं बात मीटिंग के ड्यूरिंग द मीटिंग। अगर आपके मेंबर जो प्रेजेंट है ड्यूरिंग द मीटिंग वो 50 से कम है, तो आप या तो उनको ई वोटिंग की ईमेल आईडी पे वोट कर दो, या उनको शो ऑफ हैंड का ऑप्शन देंगे, या पोल के केस में भी आपको एक ईमेल आईडी देना पड़ेगी जिससे वो वोट करेंगे। और अगर आपके 50 से ज्यादा मेंबर है तो ड्यूरिंग द मीटिंग भी आपको सिर्फ ई वोटिंग फैसिलिटी ही देनी पड़ेगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। अब चेयरमैन कैसे अपॉइंट करेंगे? जनरली कंपनी के अगर आर्टिकल ऑफ में लिखा है हु विल बी द चेयरमैन, से कम मेंबर प्रेजेंट है तो बाय शो ऑफ हैंड को अपॉइंट कर लेंगे, 50 से ज्यादा है तो वो बाय पोल वोट करके चेयरमैन अपॉइंट कर लेंगे। प्राइवेट कंपनीज में अगर 2 से 50 तक मेंबर होते हैं तो क्या ई वोटिंग देना मैंडेटरी है? नहीं, क्योंकि अगर 50 से कम मेंबर प्रेजेंट है तो आपको कोई ई वोटिंग देने की जरूरत नहीं है, आप शो ऑफ हैंड के थ्रू भी वोट कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी की वेबसाइट है, वो ईजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होल्ड करते हैं, तो क्या उनको पब्लिश करना मैंडेटरी है? नहीं। प्राइवेट कंपनी के लिए वीडियो पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है। वीडियो पब्लिश करना मैंडेटरी सिर्फ पब्लिक कंपनीज के लिए है। क्या जो ये सर्कुलर है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का 30 जून के बाद के लिए भी अप्लाई होगा? नो, दिस Am I audible? Yes. Okay, so video चला गया था sorry. So whether this circular will apply after 30th June also? No, 30th June 2020 के बाद ये सर्कुलर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ 30th जून तक एप्लीकेबल होगा। प्रॉक्सी आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो। इन केस ऑफ पॉल के केस में एक अलग से ईमेल आईडी स्पेसिफाई की जाएगी, आप उस ईमेल आईडी पे वोट करेंगे। तो जो ये कंप्लीट प्रोसेस है जनरल मीटिंग ईजीएम के थ्रू करने का, वोट करने के लिए जो ई वोटिंग है, ई वोटिंग का यहाँ मतलब है ईमेल आईडी। आपको नोटिस में एक स्पेसिफिक ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, उस ईमेल आईडी पे शेयर होल्डर अपना वोट करेंगे। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। So, as per the given topic by Sir Rajesh ji, I have discussed the CFSS scheme and board meeting and general meeting. किसी की कोई queries है तो you can raise the queries. I am here to resolve the same. सबसे पहले मैं एक ऑडियो ऑन कर रहा हूँ गुलशन गुलाटी जी का। एक सेकंड सर, होल्ड करें। Yes, yes. गुलशन जी, हेलो गुलशन जी, गुलशन जी, गुलशन गुलाटी जी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुलशन जी, आई थिंक ही इज नॉट ऑरेबल। Sir, voice नहीं आ रही है, ब्रेक हो गई है। Can you? नहीं, वॉइस इज ओके। Okay. गुलशन जी, if any question 1 2 3 4 5 6 लॉगिन का सेम है। हेलो हेलो दिवेश जी। हाँ जी सर। दिवेश जी, मैं कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा 10-15 मिनट टाइम और है। If you can Okay. throw the light on how the loan and advances, whether a private limited company or limited company can accept the loans from shareholder or director,
Okay, sir, I will come on this point. बहुत अच्छा point आपने raise किया है. This is my favorite topic to discuss always because last year जब जी से वो DP3 आया है, ये बहुत एक crucial topic बन चुका है कि loan के लिए. और कभी जब भी हम चेंजेस है इसमें, टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं, पता ही नहीं पड़ता कि वेदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन एक्सेप्ट और नॉट। एग्री सर, बहुत चेंजेस आए हैं. अगर मैं डिपॉजिट की बात करूं, एक डिपॉजिट का सेक्शन ऐसा है जब से कंपनीज एक्ट आया है 6 साल में 37 टू 38 चेंजेस आ चुके हैं इस एक सेक्शन में. तो अगर हम बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की सबसे पहले, जी फिर हम डिस्कस करेंगे पब्लिक. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए पहला क्वेश्चन होता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज कहां से लोन ले सकती है. तो जब भी हम लोन की बात करते हैं तो हमारे पास पहला सोर्स आता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है, कितनी भी अमाउंट का ले सकती है, कोई कंडीशन नहीं है. बट एक कंडीशन अटैच इसके साथ ये है कि जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन लेगी तो डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देगा कि जिस भी अमाउंट उसने लोन दिया है दिस इज हिज ओन फंड. उसने ये पैसा, उसने ये अमाउंट कहीं से बोरो नहीं किया है, उसका खुद का फंड है जो उसने यहाँ पे दिया है. तो दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन एंड फर्स्ट कंडीशन. तो आप डायरेक्टर से लोन ले सकते हो, कितना भी ले सकते हो, कोई जनरल मीटिंग रेजोल्यूशन पास नहीं करना, कोई फॉर्म फाइलिंग नहीं करनी है. तो इट इज वेरी क्लियर. अब सेकंड थिंग आता है कि जब डायरेक्टर से लिया है तो आपको आपके डायरेक्टर रिपोर्ट में जरूर नोटिस करना पड़ेगा डिपॉजिट में कि आपने डायरेक्टर से कितना लोन लिया है ड्यूरिंग द ईयर और कितना आपका आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द ईयर. तो फर्स्ट सोर्स इज द लोन फ्रॉम डायरेक्टर. Second, private limited companies can also accept loan from the relative of director. अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आप अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर के रिलेटिव से भी लोन ले सकते हैं. सबसे अच्छी चीज, जब डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन लेंगे तो आपके ऊपर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि ये उसका खुद का फंड होना चाहिए. अगर वो कहीं से बोरो करके भी देता है तो वो दे सकता है. ये खुद के फंड वाली कंडीशन ना सिर्फ डायरेक्टर से इम्पोज की है. डायरेक्टर के रिलेटिव के लिए उन्होंने कोई ऐसी कंडीशन ही नहीं लगाई है कंपनी सेक्ट में. तो आप फर्स्ट डायरेक्टर से ले सकते हो, सेकंड डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकते हो. अब थर्ड आता है मेन शेयर होल्डर. सॉरी, पहले रिलेटिव में एक क्वेश्चन और है. रिलेटिव में हमेशा आता है कि क्या डायरेक्टर की एचयूएफ से लोन ले सकते हैं. ये हमेशा एक डिबेटेबल क्वेश्चन रहता है, क्या डायरेक्टर की किसकी एचयूएफ है उससे भी कंपनी लोन ले सकती है, नहीं ले सकती है. तो जब हम रिलेटिव की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना कंपनी एक्ट में, उसमें रिलेटिव की डेफिनेशन मेंबर ऑफ एचयूएफ ऑफ डायरेक्टर को तो ऐड करती है. लाइक डायरेक्टर की एचयूएफ में अगर 5 मेंबर हैं, वो पांचों डायरेक्टर के रिलेटिव माना जाएंगे. बट वो कहीं भी एचयूएफ को एज ए मेंबर, एज ए रिलेटिव ट्रीट नहीं करती है. तो जब एचयूएफ को एज ए रिलेटिव ट्रीट ही नहीं करती है तो एचयूएफ से लोन भी नहीं ले सकते हैं. तो प्रैक्टिकली आप डायरेक्टर से लोन ले सकते हो, डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले सकते हो. डायरेक्टर के रिलेटिव में कभी भी एचयूएफ कवर नहीं होगी. तीसरी सिचुएशन आती है, क्या ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म जिसमें हमारे सारे डायरेक्टर ही पार्टनर है, हमारी कंपनी में 3 डायरेक्टर है, वही तीनों डायरेक्टर पार्टनरशिप फॉर्म के पार्टनर है, क्या ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म से लोन ले सकते हैं? नहीं. प्राइवेट कंपनी ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म से भी लोन नहीं ले सकती. अगर ले लेती है तो वो डिपॉजिट बन जाता है और उसके काफी सारे कंप्लायंस है, तो ये भी नहीं कर सकती. फिर आता है कि डायरेक्टर की प्रोप्राइटरशिप कंसर्न से ले सकती है. तो एज पर माय नॉलेज ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स, प्रोप्राइटरशिप इज नथिंग लाइक द इंडिविजुअल डायरेक्टर्स ओनली. तो डायरेक्टर की प्रोप्राइटर से डेफिनेटली लोन ले सकते हैं, बट कोई सेम कंडीशन की आपको एक उनसे डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी, इट इज देयर ओन फंड नॉट द बोरोड फंड. तो डायरेक्टर से ले सकते हैं, डायरेक्टर के रिलेटिव से. थर्ड आ जाते हैं शेयर होल्डर. जब कंपनीज एक्ट 2013 आया था, शेयर होल्डर से लोन लेना अलाउड नहीं था. फिर 5 जून 2015 को एक एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए. उसमें मेंशन किया कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर होल्डर से लोन ले सकती है अप टू 100% ऑफ पेड अप कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. इन तीनों को मिला के जो 100% इनकी लिमिट है, उतना लोन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर होल्डर से ले सकती है. और हमें जनरली पता है, जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करते हैं, पेड कैपिटल की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, 10,000 से 1 लाख से बन जाती है. कोई रिजर्व ज्यादा है या नहीं है, तो इससे पर्पस रिजॉल्व नहीं हुआ. तो अगेन एक 13 जून 2017 को एक और एग्जम्पशन नोटिफिकेशन आया मिनिस्ट्री का
उस 13 जून 2017 की नोटिफिकेशन में उन्होंने मेंशन किया कि अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर होल्डर से लोन लेना चाहती है मोर देन 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो वो ले सकती है। 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। पहली, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की कोई सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी नहीं होनी चाहिए। सेकंड, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिया है तो 50 करोड़ और 2 टाइम ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड, उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कोई लोन के रीपेमेंट में। अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तीनों कंडीशन फुलफिल कर देती है तो उसको कोई लिमिट नहीं है, शेयर होल्डर से जितना लोन लेना चाहे ले लेगी, डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। सेकंड, वो शेयर होल्डर से लोन ले रही है तो शेयर होल्डर को कोई डिक्लेरेशन भी नहीं देनी है कि ओन फंड है, शेयर होल्डर बोरो करके भी दे सकता है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तीनों से लोन ले सकती है, डायरेक्टर से भी, डायरेक्टर के रिलेटिव से भी, शेयर होल्डर से भी। शेयर होल्डर के रिलेटिव से नहीं ले सकती। और जब शेयर होल्डर की बात करता हूँ फिर यहाँ पे एक और सिचुएशन आती है। अब डायरेक्टर की एचयूएफ है, हमने रिलेटिव कैटेगरी में तो बोला वो लोन नहीं दे सकती, बट अगर डायरेक्टर की एचयूएफ कंपनी की शेयर होल्डर है इन द कैपेसिटी ऑफ द शेयर होल्डर वो एचयूएफ हमें लोन दे सकती है। तो जब भी हम एचयूएफ से ट्रांजेक्शन करते हैं लोन का, वी हैव टू कीप इन माइंड कि वो एज अ रिलेटिव कैटेगरी में जाने के ले रहे हो कि एज अ शेयर होल्डर। तो अगर एचयूएफ एज अ शेयर होल्डर है तो वो लोन दे सकती है और कंपनी उससे ले सकती है, कोई इशू नहीं है। फोर्थ आता है बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बॉडी कॉर्पोरेट से ले सकते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट लाइक कंपनीज, एलएलपीज, अदर टाइप ऑफ एंटिटी। 1956 एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन था कि प्राइवेट कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट से लोन ले सकती है, बट जब 2013 एक्ट आया उस बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड को रिप्लेस करके इन्होंने कंपनी वर्ड कर दिया। मतलब 2013 में आप दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हो पर किसी बॉडी कॉर्पोरेट से लोन नहीं ले सकते। मतलब आज मुझे एक एलएलपी से लोन लेना है तो मैं तब तक नहीं ले सकता जब तक वो एलएलपी मेरी शेयर होल्डर नहीं बन जाती। पर किसी दूसरी कंपनी से लोन लेना है तो मैं कितना भी ले सकता हूँ, मुझे कोई वो शेयर होल्डर डायरेक्टर की कंडीशन फुलफिल नहीं करनी है। तो सर जब लोन्स की बात करते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए जनरली ये 4 सोर्सेज होते हैं, डायरेक्टर, डायरेक्टर के रिलेटिव, शेयर होल्डर और अदर कंपनी। इन 4 सोर्सेज से प्राइवेट कंपनी कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ लोन एज पर द गिवन कंडीशन। और यही जब बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए, अब लोन लेने के लिए, जब लोन लेने के लिए जनरली आता है कि हमें कौन कौन से सेक्शन फॉलो करने हैं। पहला सेक्शन, जब भी लोन लेने की बात करते हैं तो हमें डिपॉजिट का सेक्शन देखना पड़ता है कि कहीं ये डिपॉजिट तो नहीं बन जाएगा। तो जैसे मैंने बताया ये 4 लोन अलाउड है, ये डिपॉजिट नहीं बनेंगे। फिर सेकंड आता है सेक्शन 179। सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 कहता है कंपनी जब भी कुछ मनी बोरो करती है तो उसको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, ना तो वो सर्कुलर से पास कर सकती, मतलब बोर्ड मीटिंग में वो बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा तभी कंपनी बोरो कर सकती है। तो जब भी हम किसी डायरेक्टर से लोन लेते हैं, शेयर होल्डर से लोन लेते हैं और दूसरी कंपनी से लोन लेते हैं तो वी हैव टू कीप इन माइंड कि हमें एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी कंडीशन है सेक्शन 179 की। और जब भी कंपनी इस टाइप के लोन लेती है तो उसके रिगार्डिंग कंपनी को रिपोर्टिंग करनी पड़ती है अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में। पहले इस लोन को लेने पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी फाइलिंग की। अब है कि कंपनी ने चाहे एक सिंगल रुपए का भी लोन लिया है तो वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है, तो एवरी ईयर टिल 30 जून कंपनी को डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनी, चाहे आपका लोन डिपॉजिट बनता है या आपका लोन डिपॉजिट नहीं बनता, बट अगर आपने लोन लिया है तो आपको डीपीटी 3 तो फाइल करना ही पड़ेगा। दिस इज द मैंडेटरी कंडीशन अंडर द लॉ। So these are the provision regarding the acceptance of loan by the private company. तो प्राइवेट कंपनी जब डायरेक्टर से लोन लेती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से, तब तो सिर्फ बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेगी तो काम चल जाएगा। मगर जब एक प्राइवेट कंपनी किसी शेयर होल्डर से लोन लेती है तो सेक्शन 179 में तो उसे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और सेक्शन 73 में एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी पास करना पड़ेगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि कहाँ से लोन ले सकते हैं, पर उस लोन को लेने के साथ साथ उसके सारे कंप्लायंसेस भी हमें साइमल्टेनियसली कंप्लीट करने पड़ेंगे। दीज आर द थिंग्स फॉर द प्राइवेट कंपनी। और जब पब्लिक में जाते हैं तो पब्लिक कंपनी डायरेक्टर से ले सकती है, डायरेक्टर के रिलेटिव से लेती है तो डिपॉजिट बन जाएगा, उसके लिए उसको डिपॉजिट के सारे तो
काम पूरे करने पड़ेंगे। शेयर होल्डर से लेती है तो भी डिपॉजिट बन जाएगा। तो पब्लिक कंपनीज की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनीज अपने डायरेक्टर से और दूसरी कंपनी से लेती है तो डिपॉजिट नहीं बनेगा, बाकी किसी से भी जनरली ले रही है तो वो डिपॉजिट बन जाता है। These are the provisions regarding the acceptance of loan by the company. Sir, any question on this? तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसी में कुछ ऐड ऑन करना है तो I can add. सबसे पहले सर पुनीत ठुकराल जी हैं, ही वांट टू आस्क सम क्वेश्चन। हाँ जी पुनीत जी बोलिए सर। पुनीत जी। हाँ जी, हेलो। हाँ पुनीत जी हेलो। बोलो। हाँ बोलो पुनीत जी। हाँ जी, हाँ जी, हमें, हाँ जी, my question is, suppose A was appointed as an additional director, but his appointment was not regularized in a AGM. Can he now something be done just by holding a EGM so that his appointment can now be regularized as per the current new scheme? Okay. सर अभी तक प्रैक्टिकली ये जो स्कीम आई है ना, इस स्कीम में सिर्फ अलाउ किया है लेट फाइलिंग ऑफ फॉर्म से बचने का प्रोविजन, और कोई भी अगर आपने डिफॉल्ट किया है, नॉन कंप्लायंस किया है, तो स्कीम आपको कोई बेनिफिट नहीं देती है। तो वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देगी लेट फाइलिंग से। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी होती कि आपने डायरेक्टर रेगुलराइज तो कर दिया है बट फॉर्म नहीं फाइल किया, फॉर्म डिले हो गया है, तो अगर वो आप इस स्कीम में फाइल करते ना, आपको एडिशनल फीस पे किए बिना बेनिफिट मिल जाता फाइल करने का। पर आपकी सिचुएशन है आपने रेगुलराइज ही नहीं किया, अब उस केस में क्या, जब रेगुलराइज ही नहीं किया ना, तो कंपनी लॉ बोलता है कि अगर कोई डायरेक्टर रेगुलराइज नहीं करते हैं एजीएम में, तो फ्रॉम द डेट ऑफ द एजीएम वो सीज हो जाता है टू बिकम कंटिन्यू एज अ डायरेक्टर। उसके बाद अगर आप ईडीएम भी करते हैं तो कोई उसका बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो सीज हो चुका है एजीएम की डेट पे ही। दिस इज द प्रोविजन, आप स्कीम में कोई बेनिफिट नहीं ले सकते, वो सीज माना जाता है। नाउ ओके ठुकराल जी ओके। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन okay, thank you. गुलाटी जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुलाटी जी ओके। चांदनी मल्होत्रा जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ जी राजेश जी, can public company can give a loan to take a loan? ऑडियो क्यों नहीं? अच्छा गुलाटी जी एक मिनट होल्ड कीजिए, चांदनी जी जरा ऑनलाइन है। चांदनी जी पूछिए। If आपका public आवाज आ रही है राजेश जी? loan from its director, then it is not under deposits. If public company Take a loan from its directors, then it is not Yes. under deposits. क्या, बिकॉज सी, अब इसके लिए मैं जनरल आपको एक आइडिया बताता हूँ। अगर जनरली हमारे माइंड में एक डाउट हमेशा रहता है कि क्या डिपॉजिट पे फॉल करेगा क्या नहीं करेगा, तो इसके लिए बेस्ट वे है कंपनीज एक्ट का जो डिपॉजिट का चैप्टर है उसके रूल्स में एक डेफिनेशन है डिपॉजिट की। वो एक पूरी एक्सक्लूडिंग डेफिनेशन है कि क्या क्या इंक्लूड नहीं होगा। उसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि अगर कोई भी कंपनी अपने डायरेक्टर से लोन लेती है तो डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि इट इज देयर ओन फंड नॉट बोरोड फंड, so it will be considered as a non deposit for every type of company. तो अगर आप जब भी नेक्स्ट टाइम से आपको डाउट आता है तो जस्ट वो डेफिनेशन रेफर करिएगा, उसमें पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन सा डिपॉजिट होगा और कौन सा नहीं। Okay, so thank you. गुलशन गुलाटी जी प्लीज। गुलशन गुलाटी राजेश जी, कैन यू हियर मी? हाँ सर आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, बोलिए बोलो। देवेश जी, गुड इवनिंग। इन अ कंपनी देयर आर 4 brothers who all are directors, right? And now there's a dispute in the company, there's a family dispute, and 2 brothers are on one side, 2 brothers are on the other side. Now they want to, 2 brothers want to appoint one more director, so that there is no, because every time they hold a board meeting, there is no quorum, because whatever decision they want to take, 2 brothers always oppose it. So now 2 brothers want to appoint one more director, so that whenever they want to take any decision, that same can be taken. So now they had issued a notice to other directors, but due to this COVID, this board meeting has been postponed. No, what I am suggesting to them is that to hold a board meeting through video conferencing. So now suppose what would happen if they hold a board meeting and others 2 directors do not join them, or can they challenge us that we had appointed the directors by not following the adequate rules? What precautions they should take so that everything can be channelized? I just give answer of this question. For an example, definitely it is legally allowed to hold a board meeting through video conferencing. So 2 directors who want to appoint a new director, they have to send a proper notice through email.
to those other two directors about that board meeting. They have to give all the details like draft resolution, notes to agenda, whatever required in the secretary standard. Make precaution कि you are sending the proper document to them through email, and email should be like that कि you are getting the delivery status also कि it is delivered to them, so that they cannot challenge it. तो अगर आपने proper notice दिया, proper आपके पास delivery proof भी है, उसके बाद at the time of the meeting अगर वो join नहीं करते हैं, तो आप उनकी proper absence दिखाओ meeting में, उसके बाद draft minutes भी उन्हें circulate करो कि वो एब्सेंट थे, और उसके थ्रू आप एक नया डायरेक्टर अपॉइंट कर लो. तो अगर आप ये प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू करते हो तो दे कैन नॉट चैलेंज ऑन द लीगलिटी. अच्छा, in the notice there is one more that we usually in the notice we usually write at the last that any other in the agenda we write that any other topic with the permission of chairman. So is it necessary that we should write a notice that we are going to appoint a new director in the board meeting? And if we do not mention that we are going, I tell you the reason. जब डायरेक्टर जैसा मैटर है ना, क्या होता है कि आपको रेजोल्यूशन पास करने से पहले उस डायरेक्टर की कंसेंट लेनी पड़ती है. तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये अर्जेंट मैटर का हमने कंसेंट ली. तो बेटर कि आप इसको अदर एजेंडा में नहीं रखें, मेन एजेंडा में ही रखो और कंसेंट साथ में रखो कि दे आर एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट. One small thing, Gulati ji, if the chairman, one moment sir, one interrupt. If the chairman is from the two brothers, then chairman will have a casting vote, na? So no, there is no, as per four brothers, two are disagreeing, two are agreeing, the chairman do the casting vote who is also chairman. No, but as per article, there is no chairman, so the extra chairman appointed in the meeting will not get extra bit, I think. Okay. Right. Am I right? Yes, you are right, sir. You are right. Actually, you are aware of the articles. Okay, thank you. Yes. Now, Rajesh Chaudhary ji, please. Thank you, sir. Thank you. Rajesh Chaudhary ji, do you want any question? No, sir, no. Achha, okay. Any other question? Achha, sir, there are some question which has been posted on my timeline or WhatsApp. So I am reading one by one. Please, sir, hold down. Sir, now one question is this. Can we take benefit of the scheme for seeking condonation of delay in holding AGM? Okay. This is the actually relevant question. As I was already said, हमें जो स्कीम का बेनिफिट मिलेगा ना, वो सिर्फ लेट फाइलिंग फीस बचाने के लिए बेनिफिट मिलेगा. कोई और अगर हमने डिफॉल्ट किया है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा. एजीएम हमने टाइम पे नहीं की तो उसका हम कोई बेनिफिट नहीं ले सकते. उसके लिए तो हमें कंपाउंडिंग करवानी ही पड़ेगी. तो जो बेनिफिट मिलेगा सिर्फ लेट फाइलिंग को फॉर्म का बेनिफिट है और कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. Second question, if a company status is active, yes, but company non-compliant, right, whether it can take benefit of scheme? Yes. All the companies whose status are active can take the benefit of scheme. They can file all the pending form. चार्ज का तो आपने बता दिया. चार्ज जो चार्ज को फाइलिंग नहीं है, they cannot take the benefit of this scheme. Yeah, charges में नहीं ले सकते सर benefit. If in private company, two directors are physically present, other are in meeting through video conferencing, then can held AGM for ordinary business? हेलो, प्राइवेट कंपनी के केस में एजीएम की बात करते हैं. जी. तो एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो ही नहीं सकती है, चाहे आपकी फिजिकल फोरम प्रेजेंट है या नहीं है. आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कर ही नहीं. गुलाटी जी आप अपना ऑडियो ऑफ कर दो. गुलाटी जी प्लीज अपना ऑडियो ऑफ कर दो. ओके सर. जी सर. गोयल साहब प्लीज. हाँ, आई एम सेइंग कि सर अगर एजीएम की जो बात है ना, चाहे आपकी फिजिकल फोरम प्रेजेंट है या नहीं है, आपकी एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो ही नहीं सकती है. तो दो प्रेजेंट हो तो हम दो को प्रेजेंट करके फोरम पूरी करके मीटिंग कर लो, वो चलेगा. बट आप अदर्स को अलाउड नहीं कर सकते कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अटेंड करें. हेलो. ओके. हाँ हेलो मैडम बोलिए. हाँ सर, एक्चुअली आई वांट टू नो कि अगर एक कंपनी ने लोन लिया है बैंक से और उसका चार्ज क्रिएट नहीं कराया और इस बात को मोर देन 6 months हो चुके हैं, तो वो उस कंपनी को उस लोन को लिए हुए मोर देन 6 months हो चुके हैं, तो वो एमसीए में चार्ज कैसे रजिस्टर करा सकते हैं?
मैम अगर एक्चुअली लास्ट ईयर देयर वाज अमेंडमेंट इन द चार्ज, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 के थ्रू अमेंडमेंट आया था 2019 के थ्रू कि आप चार्जेस जो रजिस्टर कर सकते हो मैक्सिमम 120 दिन में कर सकते हो। आपके 120 दिन क्रॉस हो गए तो कंपनीज एक्ट में ये ओनली ऐसा सेक्शन है कि आपके पास कोई वे आउट नहीं है चार्ज रजिस्टर करने के। अब आपके केस में जैसे 120 दिन क्रॉस हो चुके हैं तो आप रजिस्टर नहीं करवा सकते, देयर इज नो वे आउट, किसी भी अथॉरिटी के पावर ही नहीं है। तो इस चीज की बैंक और कंपनी दोनों को पेनल्टी पे करनी पड़ेगी? अगर फ्यूचर में आरओसी अगर कंपाउंडिंग का नोटिस भेजता है या आप क्यों मोटो जाते हो तो कंपनी पे ही पेनल्टी लगेगी, कभी भी बैंक पे नहीं लगेगी, बिकॉज डिफॉल्ट इज द डिफॉल्ट ऑफ द डायरेक्टर एंड द कंपनी, डिफॉल्ट उनका नहीं माना जाएगा। ओके, थैंक यू। ओके, इज देयर एनी क्वेश्चन? हाँ सर, एक क्वेश्चन मेरा भी है। जी बोलिए। योर हाँ गुड नेम? सर, दिलशाद। ओके ओके बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली जब व्हेन वी रिफर रूल 2 ऑफ डिपॉजिट रूल्स, तो एनी अमाउंट एक्सेप्टेड बाय द कंपनी इन कंट्रावेंशन ऑफ रूल 2 इज अ डिपॉजिट, राइट? राइट। Suppose a company is issuing a debenture, unsecured debenture, which is non-convertible, ठीक है, for a term of 10 years. तो it is a deposit under rule 2. Yes, definitely. ठीक है सर, तो 10 years के मान लो डिबेंचर इशू कर रही है कंपनी, तो अब जैसे डिपॉजिट बन रहा है बाय वर्च्यू ऑफ रूल 2, तो डू वी नीड टू कंप्लाई द टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ डिपॉजिट 6 month to 36 You have to months? comply the complete process of section 73 subsection 2. Okay. जो प्रैक्टिकली आप डिबेंचर इशू करने के लिए कंप्लाई नहीं कर रहे हो। Yes. तो अल्टीमेटली जब वो डिपॉजिट बन जाएगा ना, तो ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट बनने के बाद आपको कंप्लायंसेस करने हैं, आपको वो लेने से पहले कंप्लायंसेस करने थे। एक बार डिपॉजिट बन गया तो आपका वो सेक्शन 73 का नॉन कंप्लायंस हो गया है। अब आप कुछ भी कर लो, वो नॉन कंप्लायंस रिजॉल्व नहीं होगा आपका। Okay. So this is the company was unaware at the time of suggest issue. to not to do this because डिपॉजिट के सेक्शन पे काफी हैवी पेनल्टीज है, मिनिस्ट्री इज टू स्ट्रिक्ट अबाउट द डिपॉजिट। Yes sir. Yes sir. Yes. Okay sir. Thank you. Okay. Any question, Mohit ji? Do you want raise any question? Sir, I have one question. बोलो Mohit ji बोलिए। नहीं, I just want to say good evening. I just joined sir few minutes back. Sir, I am Amit Agrawal. I have one question, sir. बोलिए अमित जी बोलिए। सर मेरा था कहना था, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर और शेयर होल्डर सेम ही होते हैं जनरली। तो डायरेक्टर के केस में लेकिन कंडीशन है कि वो बोरर करके नहीं दे सकता लोन, लेकिन शेयर होल्डर के केस में कंडीशन नहीं है। तो इन केस अगर डायरेक्टर करता है, अगर वो शेयर होल्डर के थ्रू आके अगर वो करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो अब दो चीजें हैं, आपका पर्सन एक ही पर्सन डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, राइट? तो जो पर्सन डायरेक्टर भी है, शेयर होल्डर भी है, अगर वो देखो बोरोड फंड में से दे रहा है, आप स्पेसिफिकली दिखाओ कि इट इज लोन फ्रॉम द कैपेसिटी ऑफ द शेयर होल्डर ओनली। और मतलब जहां भी आप डायरेक्टर रिपोर्ट में डिस्क्लोजर दोगे और आप जो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करोगे, एवरीवेयर जस्ट मेंशन कि लोन इज टेकन इन द कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, तो आप बोरोड फंड में दे सकते हैं। और डेफिनेटली बेनिफिट तो हमारे पास है ना, बेनिफिट ऑफ कंपनी के पास है, बट आपको फिर प्रोसेस भी वही फॉलो करना पड़ेगा शेयर होल्डर वाला। डोंट फॉरगेट कि आप प्रोसेस तो फॉलो करो डायरेक्टर वाला और दिखा दो शेयर होल्डर। नहीं इन केस मतलब डीपीटी 3 भी फिर फाइल करोगे तो डीपीटी 3 में भी दिखाना लोन फ्रॉम शेयर होल्डर भी है। Sir, I have one question. Yes. Sir, can a company give technical fees to its whole-time director other than its director remuneration? मतलब question is whether the technical fees is to be treated as remuneration or what? मतलब I just got your question. जनरली क्या होता है कि जब हम होल टाइम डायरेक्टर की बात करते हैं ना, अंडर कंपनीज एक्ट होल टाइम डायरेक्टर इज आवर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और डेफिनेशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर स्पेसिफिकली मेंशन होल टाइम डायरेक्टर मींस द पर्सन हु इज द डायरेक्टर प्लस होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो इफ अ पर्सन इज होल टाइम एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, तो वो हमें कोई भी सर्विसेज देता है, हम उसको अलग से फीस नहीं दे सकते, बिकॉज जो प्रोफेशनल फीस की बात आती है ना, वो हम टेक्निकल जो प्रोफेशनल फीस देते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को तो दे सकते हो। अब होल टाइम डायरेक्टर जो पर्सन हमारी कंपनी का होल टाइम एम्प्लॉई है, अब वो किसी भी कैपेसिटी में हमें सर्विसेज देता है तो उसकी वो रेम्युनरेशन का पार्ट ही बनेगा। ओके, और वन मोर क्वेश्चन कि इफ अगर हम सेटिंग फीस किसी एक मतलब डायरेक्टर को पे करना चाहते हैं, तो क्या ये प्रोविजन है कि हम सिलेक्टेड डायरेक्टर्स को सेटिंग फीस पे करें, या कंपनी एक्ट बोलता है कि सिटिंग फीस आपको सबको देनी पड़ेगी। सबको? अगर डायरेक्टर डिनाई कर देता है तो अलग बात है, बट आप तो उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हाँ, बट वन मोर थिंग, आप कभी भी होल टाइम डायरेक्टर और एमडी को सिटिंग फीस नहीं दे सकते। ओके, सिर्फ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को दे सकते हैं। यस,
क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर और WTD पे सेम वही प्रोविजन आ जाता है, वही कि वो प्रोविजन आ एम्प्लॉई है कंपनी के। यस सर, यस। एम्प्लॉई को हम अलग से कुछ नहीं देंगे। ओके ओके, थैंक यू सर। Sir, there are more question on the chart. If a director is disqualified due to non-filing of 3 years annual return, right, whether director status can be active or another director to be appointed? See, I have already discussed this. I am again discussing this. In case of disqualification, कंपनीज एक्ट में कोई प्रोविजन नहीं है डिस्क्वालिफिकेशन रिमूव करने का। तो एक बार अगर एक डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाता है तो उसकी डिस्क्वालिफिकेशन हम इस स्कीम से रिमूव नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि नया डायरेक्टर अपॉइंट करके अपनी फाइलिंग पूरी कर सकते हैं। Sir, when the director is disqualified, how he can appoint another director when his signature is? Yes, ये भी मैंने डिस्कस किया था। लाइक अगर वो सारे डायरेक्टर हम बोलते हैं कि हमारी कंपनी में 2 डायरेक्टर थे, दोनों डिस्क्वालीफाई हो गए, तो सेक्शन 167 कंपनीज एक्ट का बोलता है जब सभी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो गए तो प्रमोटर नया डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे। प्रमोटर मींस शेयर होल्डर। अब हो सकता है वही डायरेक्टर प्रमोटर भी हो, हमें कोई इशू नहीं है अगर वो डायरेक्टर प्रमोटर भी है तो, बट वो प्रमोटर नया शेयर होल्डर अपॉइंट करेंगे जनरल मीटिंग कॉल करके, उसके फिर फिजिकल डॉक्यूमेंट आरओसी में सबमिट होंगे, आरओसी बैक हैंड से डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। Or a question, we will have to make an application for showing it as a defective return and ROC from the back. No, Rajesh, answer है, that's the answer. Okay. That is Hemant Pavaji's question. कि in the return he filed, so they didn't take the CFS form. Yeah. So that has to be rectified, that document. Any other question? I think Sandeep Goyal ji, please. संदीप गोयल। हाँ, बोलो सर। गोयल जी, मैं पूछना चाह रहा था, जस्ट few minutes before you told कि in case a person is director as well as shareholder in a private limited company, then the loan taken from shareholder in capacity as a shareholder, no declaration is required. So isn't मतलब the very purpose of declaration is defeated in this such cases? This is actually the reason is that अगर इंडियन कंसेप्ट की बात करते हैं तो मोस्टली आर द प्राइवेट कंपनीज। In the case of private limited companies, so all the private limited companies will then do allot some shares, even some amount of shares, some shares in the name of directors also. The very purpose of declaration is defeated then. See, sir, I agree with your point, but the purpose is that कि earlier जब कंपनीज एक्ट आया था ना, तब उन्होंने सिर्फ डायरेक्टर से अलाउ किया था और डिक्लेरेशन का एक कंसेप्ट डाल दिया था। बाद में उन्होंने कंसेप्ट में रिलैक्सेशन तो डाल दी शेयर होल्डर के लिए, बट ये डिक्लेरेशन वाला पॉइंट कहीं मेंशन करना हम बोल सकते हैं भूल गए या व्हाटएवर वाज द इंटेंशन। So my reason is there is a limit on the borrowing from shareholders, but from directors you have a unlimited borrowings. So it's prefer to show as a share from a director than a shareholder. मतलब शेयरहोल्डर के केस में जैसे मैंने डिस्कस किया कि आप अनलिमिटेड ले सकते हो। केस ऑफ शेयरहोल्डर, so from shareholders also you can take any amount of limit. There is agree sir, शेयरहोल्डर से भी अनलिमिटेड ले सकते हैं अगर कंडीशन तीनों फुलफिल कर लेते हैं तो इन दैट केस वही पर्पस है कि आप जो प्रोसेस है वो प्रॉपर फॉलो करो शेयर होल्डर से लोन लेने का। आप अपने डीपीटी 3 में अपने डायरेक्टर रिपोर्ट में सब जगह प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे तो देन इट इज नॉट ए नॉन कंप्लायंस, यू कैन एक्सेप्ट एज द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर। बस लो रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कहीं पे। ठीक है जी गोयल जी। Now Pradeep Agrawal ji, please ask your question. You have raised the hand. Pradeep Agrawal ji, आ रही है सर? बोलो। हाँ आ रही है, बोलो ना सर। Loan is taken from the shareholders or from any other private company. Is the DPT3 is required to be filed? DPT3 is required to file for the any loan. आपने 1 रुपए का लोन किसी से भी लिया है DPT3 तो फाइल होगा ही। The DPT3 was not filed for earlier years. Can we take the advantage of this scheme? Yes, you can take the advantage in the scheme. आप फाइल कर सकते हैं without any additional fee. DPT3, if the loan is taken from directors, is not required to be filed. Required to be filed. I am saying loan from any person, any amount, DPT3 is required. In all the cases, DPT3 is required to file where loan taken from director is not a deposit,
provided undertaking is taken, that loan is taken from own sources. Even if it is not a deposit also, DP3 में specific column है कि आपने कोई deposit लिया है या loan है, तो आप लोन वाले कॉलम पे टिक करके फॉर्म फाइल करेंगे कि हमारा डिपॉजिट नहीं है बट लोन तो है ही ना. अच्छा, लोन के रूप में. थैंक यू सर. I objected. Hello. Any other question? Sir, I have one question. जी. Sir, loan taken during the day and repaid during the day. Loan taken during the day. Okay. And repaid before EOD. Okay. So how to have a treatment of this? So let us say there is one company where a lot of checks are hit in the bank account. So he has taken money from another company time being, and before day end, they received money from customer and repaid to that company from morning they have taken. Right. जी सर, अब इसमें जो पहली चीज आएगी, जब मॉर्निंग में लिया, लेने के लिए जो जो कंप्लायंस करने होते हैं वो लेने से पहले करने होते हैं. जी. तो मॉर्निंग में लिया, लेने से पहले दूसरी कंपनी से लिया, तो आपको सेक्शन 179 में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना था, वो आपको करना पड़ेगा. ओके. राइट. दूसरी चीज, अब जब लिया है तो लेते टाइम आपको देखना पड़ेगा कि जो कंपनी दे रही है सेक्शन 185 में तो कहीं फॉल नहीं कर रही है. नहीं फॉल करती है तो आप जनरली बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो और लोन ले लो. इवनिंग में आप रीपे कर दो, कोई इशू नहीं है. लेकिन जब डीपीटी 3 की बात आएगी, वो बोलता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर आउटस्टैंडिंग होना चाहिए. आपका आउटस्टैंडिंग नहीं है तो वो डीपीटी 3 में कहीं नहीं दिखेगा. ओके. ठीक. ओके सर, थैंक यू. गौरांश चावला जी प्लीज. गौरांश चावला जी. सर मेरे अकॉर्डिंग डीपीटी 3 एक ही बार फाइल करना था, उसके बाद फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी. अगर डीपीटी 3 इज अ सर एनुअल फॉर्म नाउ, एवरी ईयर फाइल करना. कब से वो इफेक्टिव है? ये लास्ट ईयर ही आ गया था दिन में. तो अगर कोई भी एनबीएफसी एवरी ईयर टिल 30th जून हमें एवरी ईयर फाइल करना है डीपीटी. अगर एनबीएफसी से लोन ले रहे हैं उसका भी, एनबीएफसी बैंक से भी ले रहे हैं, बैंक से भी लोन ले रहे हैं तो भी आपको लिख करना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पुष्पिंदर अग्रवाल जी. पुष्पिंदर अग्रवाल जी. हेलो पुष्पिंदर अग्रवाल जी, प्लीज ये आस्क योर क्वेश्चन. सर ऐसा है, ये जो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये जो आई है सारे फॉर्म फाइल नहीं है. अग्रवाल जी, योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज. अग्रवाल जी. हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, बोलो सर, बोलो. आई है सेटलमेंट स्कीम जिसमें फॉर्म फाइल होने हैं. हाँ जी. इसमें ये जो डायरेक्टर्स हैं ये बाकी कंपनियों में तो अपॉइंट नहीं हो सकते थे, क्योंकि ये डायरेक्टर की एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं हुई है पिछले कई सालों से. हाँ जी. डिजिटल सिग्नेचर से ये सारे फॉर्म फाइल हो जाएंगे? सर देखो, दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक कि डायरेक्टर के डिन का स्टेटस क्या है. अगर डायरेक्टर के डिन का स्टेटस एक्टिव है फिर तो आप कितनी भी कंपनी में उनके फॉर्म फाइल कर सकते हैं उनके डीएससी से. बट अगर स्टेटस उनका डायरेक्टर का डिस्क्वालीफाई है तो वो ना तो उस कंपनी का फाइल कर सकते हैं ना किसी और का फाइल कर सकते हैं. तो आपको डिन स्टेटस चेक करना पड़ेगा. आएगा. हेलो. हाँ जी. ये इशू आएगा कि वो बाकी किसी कंपनियों के अंदर तो डिफॉल्टिंग डायरेक्टर्स होंगे, लेकिन उन्होंने फाइलिंग कर रखी होगी, लेकिन ये जिन कंपनियों में 3 साल की लगातार फाइलिंग नहीं हुई है उन कंपनियों में ये कंटिन्यू डायरेक्टर रहेगी. उन कंपनियों में ये डॉक्यूमेंट्स भी साइन कर सकते हैं. लेकिन आज इशू क्या आएगा कि कंपनियों की फाइलिंग कैसी होगी? हाँ सर, वही मैं बता रहा हूँ कि अब इशू क्या आएगा कि उनकी फाइलिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि दिन का स्टेटस डिस्क्वालीफाई है. एमसी के साइड पे उनका डीएससी एक्सेप्ट नहीं होगा. उस केस में आपको नए डायरेक्टर अपॉइंट करने पड़ेंगे इन कंपनीज में भी, और उन्हीं के थ्रू ही आप फाइलिंग करवा पाएंगे. सर नेक्स्ट क्वेश्चन कमल साहा जी. कमल जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. कमल जी. कमल जी. हेलो कमल जी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज. हेलो. Okay, there is no question now. Kohli sir, request you please present a vote of thanks, sir. Sure. Thank you, Dveshi, for such elaborate and talks on this schemes, because things are happening at a very fast pace, and people working from home, we are working more from home than we were doing otherwise.
and lots of knowledge sharing, and then there's a new thing, learning new techniques and everything. I think overall things will be changing. Lots for our clarification. So primarily, basically the entire, we don't have to pay any additional fees. That is the basic crux of this scheme. Yes. And but it will not rectify any lacuna or any condonation of default we have done. There is no right for that. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you all of thanks to all. Thank you, sir. Everyone. Thank you. Thank you.